کہانی سینٹرل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ ہاں، اس کا چہرہ گول ہے، سنہرا رنگ ہے اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں۔ اس کے چہرے کی سب سے جاذب چیز ہے اس کے بال، گہرے سیاہ، گھنے، لمبے اور ہلکے سے گنگریالے ہیں۔ اور ہاں، اس کے چہرے پر دائیں رخسار پر ہونٹوں سے کچھ اوپر سیاہ تل ہے۔ میں نے اس کا خاکہ ذہن میں لاتے ہوئے تفصیل سے بتایا تھا۔ ہاں، بالکل یہی تھی، یہی نقش، یہی رنگ۔ اور سنو، وہ چونک کر بولا، کیا تم نے اسے روشنی میں دیکھا تھا؟ اتنی تیز روشنی میں کہ اس کے رخسار کا تل بھی نظر آ گیا۔ تب میں اچھل پڑا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے ہمیشہ اسے دور سے ایک سائے کی طرح دیکھا تھا۔ ابا کے کمرے کی کھڑکی سے جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا تو اس کا فاصلہ کم سے کم 25 قدم ہوگا اور وہ باہر اندھیرے میں تھی، جبکہ میں، پھوپھی اور بہنیں سب ابا کے کمرے میں تھے اور کمرہ روشن تھا۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہوں گے کہ اگر کمرے میں روشنی ہو تو باہر اندھیرے میں کھڑا آدمی بھی ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ اس کا ہیولہ بھی بڑی مشکل سے دکھائی دیتا ہے۔ اور دوسری بار جب اس نے سوتے سے مجھے جگایا تھا، اس وقت بھی وہ اندھیرے میں تھی، مجھ سے آگے چل رہی تھی۔ اس روز گہرے اندھیرے کے علاوہ میں گہری نیند اور مدہوشی کسی کیفیت میں تھا۔ تیسری بار ابا کی برسی کے بعد، گنگوا کے دفنائے جانے کے بعد، جب میں نے اسے بڑے برآمدے کے اس طرف چیتا کے قریب روتے دیکھا تھا، تب بھی وہ سائے کی طرح نظر آئی تھی۔ اور اس روز تو وہ گھٹنوں پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ایسی صورت میں مجھے اس کے نقش بھلا کیسے نظر آ سکتے تھے؟ اس کا رنگ، آنکھیں، حتیٰ کہ رخسار کا تل۔ میں حیرت سے شرف الدین کو تاک رہا تھا۔ ہاں، وقار الحسن، میں نے بھی اسے اندھیرے میں دیکھا تھا اور وہ سر جھکائے بیٹھی رو رہی تھی، مگر اب جب میں اس کا تصور کرتا ہوں تو وہ اپنے قد، کاٹ، رنگ اور واضح نقوش کے ساتھ میرے ذہن میں آ جاتی ہے۔ اس نے یوں کہا جیسے اس نے میری سوچ جان لی ہو۔ میرا خیال تھا کہ میرے ذہن میں کسی ایسی عورت کا تصور چھا گیا ہے جسے میں نے کہیں دیکھا ہوگا اور وہ میرے ذہن میں کہیں رہ گئی ہوگی، اسی لیے میں نے تم سے پوچھا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید میں ٹھیک سوچ رہا ہوں، مگر جو حلیہ تم نے بتایا وہ میرے ذہن میں آ جانے والی شکنتلا ہی کا حلیہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم دونوں کی سوچوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس میں عمر، مطالعے اور تجربے کا بھی بڑا حصہ ہے۔ تمہارے نزدیک حسین کا تصور یقیناً اپنی عمر اور تجربے کے مطابق ہوگا، اس لیے یہاں بات 100% حقیقت لگتی ہے، تل برابر بھی فرق نہیں ہے۔ وہ رکا، اس نے شگفتہ سے پانی لانے کو کہا۔ بھیا جی، ابھی نہیں سنائیے گا، میں پانی لے آؤں پھر بتائیے گا، شگفتہ نے ٹھٹک کر کہا تھا اور بچوں کی طرح بھاگتی ہوئی باہر چلے گئی۔ وہ بہت جلدی پانی لے آئی، پانی گلاس میں سے چھلک رہا تھا۔ میں اس کی کیفیت دیکھ کر ہنس پڑا۔ وہ تھوڑا سا شرما گئی۔ اب بتائیے نا۔ وہ پھر وہیں بچھی چاندنی پر شرف الدین کے بالکل سامنے سر اٹھا کر بیٹھ گئی۔ کیا بتاؤں؟ بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ جن باتوں کو میں محض وقار الحسن کے دماغ کا فطور سمجھتا تھا، اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے۔ پھر وہ میری جانب متوجہ ہوا۔ میں نے اپنے دوست عارف صدیقی سے پہلے اپنا معائنہ کروایا تھا، وہ آج صبح آ چکا ہے۔ اس نے میرا مکمل چیک اپ کر مجھے ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل صحت مند قرار دے دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی رپورٹ تمہارے بارے میں بھی بالکل یہی ہوگی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت بیرونی دروازے پر بڑی زور سے دستک ہوئی تھی۔ شرف الدین اٹھ کر باہر چلا گیا۔ دروازے پر کوئی تھا، کیونکہ شرف الدین کی اندر آنے والی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، مگر الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ دوسرے لمحے شرف الدین گھبراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ آتے ہی اس نے میری جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ کیا ہوا؟ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لنڈن تھا، رمزو بابا کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کیا؟ میں چیخ پڑا۔ قتل؟ انہیں؟ مگر میں بھی اس کے پیچھے تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر آ گیا۔ مجھے حیرت تھی کہ بھلا رمزو بابا جیسے ضعیف اور بیمار شخص سے کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اس غریب کے پاس بھلا کیا تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا؟
لنڈن باہر ہمارا منتظر تھا۔ ہم تینوں تقریباً دوڑتے ہوئے لنڈن کے گھر تک پہنچے تھے۔ گھر کے باہر ایک مجمع موجود تھا، پولیس بھی آئی ہوئی تھی۔ لنڈن کے رشتہ دار بینڈ کاٹ رہے تھے۔ لنڈن کی بوڑھی ماں پر گشی کے دوڑے پا رہے تھے۔ یوں تو رمزو بابا ویسے ہی قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے تھے۔ دوسرے پل کی خبر نہ تھی۔ یوں مر جانے پر سب کو صبر آ ہی جاتا کہ عمر پوری ہو گئی اور خدا نے اٹھا لیا۔ اس عمر میں اتنے بیمار آدمی کا گلا کٹا دے کر تو لنڈن کی ماں تو کیا، دوسرے بہت سے لوگوں کو بھی غش آ گیا تھا۔ میں شرف الدین بڑی مشکل سے رمزو بابا تک پہنچ سکے تھے۔ شرف الدین نے ہی پولیس انسپکٹر کو سمجھا بجھا کر اس وقت لاش لینے سے باز رکھا، کیونکہ نہ تو لنڈن ہوش میں تھا اور نہ ہی اس کی ماں۔ گھر میں ان دو نفوس کے سوا تیسرا کوئی نہ تھا اور وہ ان دونوں سے بیان لینے پر موثر تھے۔ انسپکٹر ذرا شریف آدمی تھا۔ شرف الدین کے سمجھانے کے بعد اس نے ضروری کارروائی مکمل کی اور بعد میں آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ جانے کے بعد میں اور شرف الدین لاش کو دیکھ پائے، ورنہ تو ان پر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ شرف الدین نے جو ہی ان کے چہرے سے چادر اٹھائی مجھے ابکائی آنے لگی۔ ان کی گردن جسم سے الگ تھی، صرف گدی کا پچھلا حصہ کٹنے سے رہ گیا تھا۔ ان کا چہرہ بہت ہی ہیبت ناک ہو رہا تھا، آنکھوں کی پتلیاں پھیل کر رہ گئی تھیں۔ مجھے ان کی کھلی ہوئی آنکھوں میں بے پناہ خوف پڑا محسوس ہوا۔ لاغو اور خفیف بدن تڑا موڑا سا پڑا ہوا تھا۔ شرف الدین پھر ان کے جسم پر چادر ڈالنے لگا۔ اسی لمحے میری نگاہ رمزو بابا کے اس ہاتھ پر پڑی جو مڑا ہوا ان کے کان کے پاس تک آ گیا تھا۔ ان کی مٹھی بند تھی، انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان سے کوئی چیز نظر آ رہی تھی۔ میں نے شرف الدین کو کوہنی ماری اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ شرف الدین، رمزو بابا کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ شرف الدین نے پہلے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر گردن موڑ کر رمزو بابا کے ہاتھ کو دیکھا۔ شاید اسے بھی وہ چیز نظر آ گئی تھی۔ ہمارے پیچھے لنڈن اور دوسرے کچھ مرد اور عورتیں موجود تھے جو اچک اچک کر رمزو بابا کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چلیے چلیے آپ سب باہر چلیں، شرف الدین نے فوراً رمزو بابا پر چادر ڈال کر لوگوں سے کہا تھا۔ کمرے میں تیز بنبناہٹ سی پھیلی ہوئی تھی، کوئی رو رہا تھا، کوئی تبصرہ کر رہا تھا، کسی کی ناک سے شو شو کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ یہ سب باہر جانے کو تیار نہ تھے۔ شرف الدین نے ایک بار پھر زور سے کہا کہ سب باہر چلیں، مگر اس بار بھی کسی پر اثر نہ ہوا۔ تب شرف الدین نے لنڈن سے کہا تھا کہ ان سب کو کمرے سے باہر نکالے اور جا کر غسل کا انتظام کرے۔ کافی دیر بعد کمرہ خالی ہو گیا۔ شرف الدین نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بیڑ دیا اور تیزی سے رمزو بابا کی طرف پلٹا۔ اس نے ان کی بند مٹھی کھولنے کی بہت کوشش کی۔ بڑی مشکل سے وہ ہاتھ میں دبی سنہری چیز نکالنے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ سونے کا جالا تھا۔ میں نے اور شرف الدین نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جالا کافی بھاری اور قیمتی تھا۔ رمزو بابا غریب آدمی تھے، ان کی بیوی کے پاس تو سونے کا ایک چھلا بھی نہیں تھا، پھر ایسے وقت میں ان کے ہاتھ میں اس قیمتی جالے کی موجودگی ہمارے لیے خاصے اچنبھے کا باعث تھی۔ باہر دروازے پر آنے والوں کا شور تھا۔ میں اور شرف الدین باہر آ گئے اور جالا شرف الدین نے اپنے جیب میں رکھ لیا تھا۔ میری ہی طرح اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ ہم باہر آ کر گلی میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ لوگ آتے رہے اور جاتے رہے۔ رمزو بابا کو غسل دیا، ان کی میت تیار ہو گئی اور ہم یوں ہی بیٹھے اپنی اپنی جگہ کچھ سوچتے رہے۔ میرے ذہن میں جانے کیوں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ رمزو بابا کا قتل کرنے والی کوئی عورت ہے۔ کون، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کافی رات ہو گئی تھی، شاید رات کے 11 بجے ہوں گے جب انہیں قبرستان لے جایا گیا تھا۔ ہم انہیں دفنا کر سیدھے شرف الدین کے گھر آئے۔ وہاں باہر ہی ہمیں عارف صدیقی مل گئے جو کئی گھنٹوں سے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ شگفتہ بھی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی کھانا نکال دیا۔ ہم تینوں نے کھانا کھایا۔ پھر شرف الدین نے شگفتہ سے کہا کہ وہ کل شام تک اپنا سامان تیار کر لے، ہم کل شام والی ٹرین سے مراد آباد روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ اندر جا کر اماں اور ابا کو بتا آیا اور ان سے کہا کہ ہم عارف صدیقی کے بھائی کے گھر جا رہے ہیں۔ وہ وعدہ کر آیا تھا کہ وہ دوپہر سے پہلے ہم واپس آ جائیں گے اور کل ہی شام مراد آباد کے لیے روانہ بھی ہو جائیں گے۔ راستے میں نے شرف الدین سے اپنے شک کا اظہار کیا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ کوئی عورت تھی؟ اس جالے کی وجہ سے۔ وہ جالا رمزو بابا کا بھی تو ہو سکتا ہے۔
खामखा ये भी हो सकता है कि वो कहीं से भी आया हो। उसने जवाब दिया, वो मजदूर थे, मेरा ख्याल है कि उनके घर में इतनी कीमती चीज की मौजूदगी मुमकिन ही नहीं है। मैंने उलझे हुए अंदाज में कहा था। सारी बातें बेवकूफ़ी की हैं, उसने हाथ उठाकर कहा था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें आधी रात को कत्ल किया गया है। इतनी रात की किसी औरत का वहां आना, कत्ल करना मुमकिन ही नहीं, जबकि जाला बकौल तुम्हारे, बल्कि वाकई बहुत कीमती है। गोया तो औरत भी अमीर थी। ये जिस डिज़ाइन का जाला है, मेरा ख्याल है नवाब घरानों की खवातीन ही इस डिज़ाइन का जेवर इस्तेमाल करती हैं। और एक बात और सुन लो कि वो औरत मुसलमान है जिसका ये जाला है, क्योंकि हिंदू औरतें इस तरह का जेवर नहीं पहनती। बात सही है, मेरी समझ में तो यही नहीं आ रहा कि कोई भी रमजू बाबा को कत्ल क्यों करेगा, औरत हो या मर्द। ये तुम रख लो। उसने जेब से जाला निकाल कर दिया। मैंने उसे गौर से देखा। वो वाकई इसी तरह का था जैसे कि हमारे खानदान की औरतें इस्तेमाल करती हैं। काफ़ी भारी भी था। मैंने उसे अपनी वास्कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। इसे अगर पुलिस के हवाले कर दिया जाए तो वो कातिल का पता चला लेगी, मैंने ख्याल जाहिर किया था। अब तुम जासूस बनने की कोशिश ना करो। पहले इससे बगैर इस जाले के काम करने तो बाद में देखेंगे। आरिफ सिद्दीकी खामोशी से हमारे साथ था। इससे कबल ही शरफुद्दीन उससे मेरा तारुफ करवा चुका था। वो एक संजीदा, सुलझा हुआ और ज़हीन आदमी लगा था। मैं उसकी भरपूर शख्सियत से काफ़ी मुतासर हुआ था। उसकी आंखों में जहानत की चमक और होंठों पर धीमी मगर गहरी मुस्कुराहट सामने वाले को पहली मुलाकात में उसका गर्विदा बना सकती थी। उसे वाकई नफ्सियाती डॉक्टर ही होना चाहिए था। हम तमाम रास्ते खामोश रहे। अब शायद रात के 12 साढ़े 12 बज चुके थे। आरिफ सिद्दीकी की चौड़ी कलाई पर चमकदार रेस्ट वॉच बंधी थी, मगर मैं इससे वक़्त पूछकर अपनी कम मायगी के एहसास को बढ़ाना नहीं चाहता था। वो खामोशी से चलता रहा। हम 15-20 मिनट बाद ही हवेली पहुंच गए थे। गेट बाहर से बंद था। मैं कुंडा घुमाकर अंदर से भी बंद कर गया था। मैंने चाबी निकालकर ताला खोला। छोटा गेट खोलते ही मैंने चारों तरफ का जायजा लिया। मैं किसी गैर मामूली बात का अंदाजा लगाना चाहता था, मगर वहां कुछ भी ना था। अभी हम अंदर दाखिल हुए भी ना थे कि एक लड़के ने हमें पीछे से आवाज दी थी। वो गली में एक दरवाजे के सामने सीढ़ियों पर बैठा था। मैं ठटक गया। पान वाले बाबा आपको बुला रहे हैं, उसने कहा। मुझे? शरफुद्दीन ने अपने सीने पर उंगली रखते हुए पूछा था। नहीं जी, इन्हें, उसने मेरी तरफ इशारा किया था। जाओ और 2 पान भी लेते आना, इलायची और खुशबू वाले। ओके, शरफुद्दीन ने कहा और आरिफ को लेकर हवेली में दाखिल हो गया। मैं पान वाले बाबा के पास पहुंचा तो वो ऊँग रहे थे। बाबा, मैंने आवाज दी। वो चौंक उठे। अरे हाँ छोटे मिर्जा, ये लिफाफा। वो खातून आ गई थी। उन्होंने एक अखबार के कागज को मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने हैरत से इस थैले को देखा था। हाथ बढ़कर थैला था। मैंने इसे खोला और अंदर झांका। अंदर एक छोटी सी डिबिया थी। कौन खातून थी वो? मैंने पूछा। और कब आई थी? आपके जाते ही आई थी। मैंने कह दिया कि शरफुद्दीन के साथ गए हुए हैं आप। वो वही देखकर फिर कहने लगी कि मैं तो शहर से बाहर जा रही हूँ, वक़्त नहीं है, इसीलिए मैं ही ये आप तक पहुँचा दूँ। नाम क्या बताया था उन्होंने? अस्मत जहां। और हाँ, आपकी अम्मा को भी बहुत याद कर रही थी। स्याह बुर्का पहने हुए थी, चेहरे पर नकाब था। वैसे तो रात का वक़्त था, हुलिया क्या खाक नजर आता। अरे हाँ, टांगे वाले से पूछ लो कि कहाँ से आई थी। ये टांगा वाला ही लाया था उन्हें। इतना कहकर बाबा ने फिर से जमाई ली। सिर्फ तुम्हारे इंतजार में जाग रहा था। सफर तो खैर, वैसे लंदन के अब्बा को किसने कत्ल कर दिया? जी, मैंने मुंतसर कहा था। हुआ क्या था, किसने मारा, कुछ पता भी चला? वो उठते उठते फिर से बैठ गए थे और मुझे सख्त बेचैनी थी कि घर जाऊं और जाकर डिबिया खोल लूं फौरन से।
اور جلدی سے جا کر تانگے والے سے اس خاتون کے بارے میں پتہ کرواؤ اور سارا قصہ شرف الدین کو سناؤ. مجھے اب تک یاد نہیں آیا تھا کہ عصمت جہاں کون ہے اور انہیں میری تلاش کیوں ہے. وہ آج دوسری بار آئی تھی پھر بھی میرا انتظار نہ کیا. اگر چاہتی تو شرف الدین کے گھر تک پہنچ سکتی تھی. امروہہ تھا ہی کتنا بڑا، پھر تمام لوگ ہی سابی کو جانتے تھے. پھر منوا تو خیر ہر ایک کے حسب و نسب سے واقف تھا. اسے اشارہ بھی کر دیتی سیدھا دروازے پر پہنچا دیتا. ارے بھیا بتایا نہیں تم نے؟ انہوں نے مجھے چونکایا. بابا یہ سب تو مجھے نہیں پتا، اب اجازت دیجیے، میرے ساتھ مہمان ہیں، کہیں گے کہ خود تو باہر چلا گیا ہے، لوٹا ہی نہیں، ان کے رہنے کا بندوبست کرنا ہے. میں نے معذرت کی اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور سوال کرتے میں جلدی سے تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا حویلی کی طرف چل پڑا. میں جانتا تھا اب اگر پان بنانے کو کہا تو اتنی دیر میں بنیں گے ہی نہیں. میں لنڈن کے ابا ہی کے قاتل کی ہی نہیں بلکہ ملک میں ہونے والے ہر جرم کی داستان سنا چکا ہوں گا. وہ پیچھے بڑبڑاتے رہ گئے مگر میں نے پرواہ نہیں کی. میرا دھیان صرف ان خاتون کی طرف تھا. نامعلوموں نے مجھ سے کون سا ایسا ضروری کام تھا، کچھ عطا بتا بھی نہیں بتایا تھا انہوں نے کہ میں ان تک پہنچنے کی کوشش کرتا. انہی سوچوں میں گڑک میں حویلی میں پہنچ گیا. شرف الدین اور عارف گفتگو میں مصروف تھے. مجھے دیکھتے ہی چپ ہو گئے اور شرف الدین بولا تم پانوں کے کھیت میں نکل گئے تھے کیا؟ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا. مساری پر بیٹھ کر میں نے لفافہ کھولا اور اس میں سے مخملی ڈبیا نکالی اور جو ہی اس ڈبیا کو کھولا میں ہی نہیں خود شرف الدین میں یوں اچھل پڑا جیسے اسے بچھو نے ڈنگ مارا تھا. وہ سونے کا وہی جالا تھا جسے میں راستے میں اپنی جیب میں رکھ چکا تھا. میں نے بے اختیار ہاتھ جیب میں ڈالا اور پھر میرا ہاتھ باہر آیا تو اس میں وہی جالا موجود تھا. گویا پان والے بابا سے جو جالا ملا تھا وہ دوسرے کان کا تھا. میں نے دونوں جالے لے کر دیکھا. یہ جھالوں کی جوڑی تھی. میں ہکا بکا دیکھتا رہ گیا. کہاں سے ملا ہے یہ؟ شرف الدین نے دونوں جالے میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے پوچھا تھا. میں نے اسے تمام کہانی سنا دی تھی. یہاں سے جاتے ہوئے وہ بھی سن چکا تھا کہ کوئی خاتون مجھے پوچھتی ہوئی آئی تھی کون ہے یہ عصمت جہاں؟ اس نے سسراتی آواز میں پوچھا تھا. میں نہیں جانتا. میں نے پیشانی پر آیا ہوا پسینہ پہنچتے ہوئے کہا تھا. یہ کوئی بھی ہے وقار الحسن، ان کا اس قتل سے گہرا تعلق ہے. اور یہ جالا انہوں نے تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ انہیں کیسے پتا چلا کہ ایک کان کا جالا انہوں نے تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ انہیں کیسے پتا چلا کہ ایک کان کا جالا ہمارے پاس ہے؟ میں کیا جانوں یار، میں اس وقت سے تمہارے ساتھ ہوں. پھر میں عارف صدیقی کی طرف متوجہ ہوا تھا. معاف کیجیے گا عارف صاحب، مسائل نے مجھے اس بری طرح سے گھیرا ہوا ہے کہ آداب دوستی اور آداب مہمان نوازی تک بھول گیا ہوں. میں نے دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے کہا تھا. نہیں پلیز آپ یہ بات ذہن سے نکال دیں. مجھے اپنے گھر کا ایک فرد تصور کریں. مجھے شرف الدین تمام باتیں بتا چکا ہے. مجھے آپ سے بہت ہمدردی ہے. میں آپ کو ہلکا پھلکا اور فریش دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے اتنی اپنائیت اور محبت بڑے لہجے میں بات کی کہ میں واقعی خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا. بہت شکریہ عارف صاحب، میں نے کہا اور کہنا چاہا مگر شرف الدین پر نگاہ پڑتے ہی میں چونک اٹھا تھا. وہ دونوں جالوں کو اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر پھیلائے بہت غور سے دیکھ رہا تھا. پھر وہ اچانک چونک اٹھا تھا. منو کا گھر دیکھا ہے تم نے؟ ہاں وہ محلہ قریشی میں رہتا ہے مگر اتنی رات گئے تم رات سے خوفزدہ ہو یا محلہ قریشی سے؟ وہ جھنجھلا گیا تھا. اوہو میرا مطلب یہ نہیں تھا. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت اسے محض یہ معلوم کرنے کے لیے اٹھانا کہ وہ کون خاتون تھی مناسب نہ ہوگا. ہاں اگر وہ خاتون کسی انسان کی قاتل رہی ہے تو کسی کو بھی کسی بھی وقت اٹھا کر پوچھا جا سکتا ہے. وہ غصے میں بفر گیا تھا. شرف الدین، عارف صدیقی نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا. تم جذباتی ہو رہے ہو. پہلے طے کر لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے پھر قدم اٹھاؤ. اس کی بات سن کر شرف الدین نرم ہو گیا تھا. اس قتل کی تحقیقات تمہارے ذمہ کم از کم قانونی طور پر نہیں ہے. ہاں اخلاقی طور پر جو ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے اس کے لیے تم کام کر سکتے ہو مگر اس میں تم کسی اور کے ساتھ بد اخلاقی کرنے کے مجاز نہیں ہو. اتنی رات گئے تانگے والے کو اٹھانا اس کے ساتھ بد اخلاقی ہوگی. عارف بڑی خوبصورتی سے اسے سمجھا گیا تھا. یہ عصمت جہاں کون ہے اور تمہیں کیوں تلاش کر رہی تھی؟
इस जाले का तुम तक पहुंचाने का मकसद क्या हो सकता है? शरफुद्दीन जैसे सोचो के बंवर में चक्कर खा रहा था। उसने इतने बहुत से सवाल कर डाले थे। मैं खुद भी इस सिलसिले में काफ़ी परेशान हूँ। मैंने जवाब दिया, मुझे याद नहीं कि ये खतून कौन है। मैंने सोचा था कि मतलूब चचा के घर जाकर मालूम करूँगा, मगर वक़्त ही नहीं मिला। कल हमारे पास वक़्त नहीं है, लेकिन खैर हम इस मामले को मुरादाबाद से वापस आकर देख लेंगे। तुम फिलहाल ये दोनों जाले अपने पास रखो, लेकिन यहाँ हवेली में मत छोड़ना, बल्कि अपने साथ मुरादाबाद ले चलना। यहाँ महफूज नहीं होंगे। यूँ कहने को तो इसने बात खत्म कर दी, मगर मेरे ज़हन में जैसे मकड़ी ने जाले से बुन दिए थे। जिस बुंदे को कल रात कत्ल होने वाले की बंद मुट्ठी से निकाला गया था, इसका दूसरा बुंदा कोई खतून मेरे लिए दे गई थी। मगर क्यों? आखिर मेरा इससे क्या ताल्लुक था? वो खतून कौन थी? ये वो सवाल थे जिन्होंने मुझे आंधियों की जद पर ला खड़ा किया था। मगर आरिफ सिद्दीकी की मौजूदगी ने मुझे और शरफुद्दीन को उलझनों की इस समंदर से बड़ी जल्दी निजात दिला दी थी। उसका नरम लहजा, खूबसूरत अंदाज और हल्की फुल्की बातों ने हमें सब कुछ भुला दिया था। थोड़ी देर में हम अपने इसी पुराने मौजू पर आ गए थे। आरिफ का ख्याल भी यही था कि ये कोई नफ्सियाती मसला नहीं है, इसलिए कि नफ्सियाती उलझनों या मसाइल का शिकार कई पुश्ते एक ही किस्म के मसाइल का शिकार नहीं हो सकती, बल्कि हालात और इर्द गिर्द के माहौल के ज़ेरे असर उलझनों की अक़साम तब्दील हो जाती है। और इन अरसे और उम्र से मुतल्लिक भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो तब्दीली की बड़ी वजह बनती हैं। मसलन जो शक्ल और सूरत मिर्ज़ा सुलत बेग को नज़र आती होगी या उनके ज़माने में किसी को नज़र आई होगी, वो मुझे मनोअन वैसी ही दिखाई नहीं दे सकती। अगर ये महज नफ्सियाती पन की वजह से पैदा करदा कोई तसव्वुराती चीज़ हो, माहौल और ज़माना हो, उम्र के लिहाज से इसमें तब्दीली नागुज़ेर है। उसने बड़ी फ़राख दिली से ये तस्लीम कर लिया था। वो खुद भी मौफ़ूक़ुल फ़ितरत चीज़ों का कायल था, और ऐसे बहुत से वाक़यात इंसानी तवज्जो के बगैर भी रोनमा पजीर हुए हैं और मुस्लिम हकीकत की हैसियत रखते हैं। मुझे इसकी बातों से बहुत ढारस हुई थी। वो बातें मेरी बजाय शरफुद्दीन के लिए ज़्यादा ज़रूरी थी। हर चीज़ की लॉजिक की खोज में रहता था शरफुद्दीन। इसके बाद आरिफ ने तफसील से मुझसे वाक़यात पूछे थे। बाज़ मरतबा एक वाक़े को वो अचानक 2 बार पूछ लेता था, या किसी और वाक़े के दौरान किसी एक चीज़ के बारे में सवाल भी कर लेता था। इस तमाम रात हम जागते रहे थे। आरिफ पूछता रहा, मैं और शरफुद्दीन उसे बताते रहे। शायद आधे ही घंटे बाद रमज़ू बाबा के कत्ल, इन खतून और सोने के इन झालों को भूल चुके थे। पूरी रात बड़े सुकून से गुजरी थी। खौफज़दा कर देने वाला कोई वाक़या ना हुआ, ना किसी किस्म की कोई ऐसी बात हुई जो हमें डिस्टर्ब करती। सुबह हो गई। हमारी आंखों में कतई नींद ना थी। आरिफ को 10 बजे दिल्ली के लिए रवाना होना था। हमने होटल में जाकर चाय पी, उसे रुखसत कर आए। हम शरफुद्दीन के घर की तरफ जा रहे थे कि अचानक शरफुद्दीन मोहल्ला कुरैशी की तरफ मुड़ गया। मैं समझ गया कि वहाँ क्यों जा रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मनवा मिल जाएगा, मगर मेरा ख्याल गलत निकला। वो घर के आगे खड़ा घोड़े को तांगे में जोत रहा था। मुझ पर निगाह पड़ती वो मुस्कुराया। कैसे हैं छोटे मिर्ज़ा? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस जी रहे हैं जी, अल्लाह का बड़ा करम है। आप यहाँ कहाँ? हम आपके पास आए थे। कोई खतून हमारी हवेली आई थी, हमें पूछती हुई आपके तांगे में आई थी। हाँ याद आया, आई तो थी, मगर जब आप नहीं मिले तो पान वाले बाबा से कुछ कहकर वापस लौट गई थी। उसने घोड़े के सामने पानी की बाल्टी रखते हुए जवाब दिया था। उन्हीं के बारे में मालूम करना था। वो कहाँ से आई थी? मेरा मतलब है कि आपके तांगे में कहाँ से बैठी थी? मेरी इनसे मुलाकात नहीं हो सकी और मुझे आज मुरादाबाद जाना है। बड़ी उलझन रहेगी अगर उनसे मुलाकात ना हो सकी। सोचता हूँ खुद ही उनका पता करके उनसे मिल लूँ। मेरी बात सुनकर मनवा के माथे पर बाल पड़ गए, आंखों में सोच सी लहरा गई। वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा और फिर धीरे से बोला, छोटे मिर्ज़ा एक बात कहूँ? मेरा दिल धड़क उठा था। हाँ कहो, बुरा ना मानिएगा, बात कुछ अच्छी नहीं लग रही, मगर छुपाने को दिल भी नहीं चाहता। वो कान खुजाते हुए बोला था। आप बेधड़क रहिए, हम बुरा नहीं मानेंगे। मुझसे पहले शरफुद्दीन बोल पड़ा था। वो मुझे कुछ यूं ही सी लगी थी, इसलिए कि रात का वक्त था। मैं कब्रिस्तान वाली सड़क से घर लौट रहा था। कब्रिस्तान से निकली थी वो। पहले तो देने में मुझे पता ना चला कि कौन है, मगर एकदम जब वो तांगे के सामने आ गई तो मुझे तांगा रोकना पड़ा। मैंने उन्हें कब्रिस्तान से बाहर आते देखा था।
انہیں کیا ایک ہیولے کو دیکھا تھا، خیال آیا کہ کوئی مجاور ہوگا، مگر اب انہیں اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ انہوں نے تانگا رکتے ہی مجھے آپ کی حویلی چلنے کو کہا اور میرا جواب سنے بغیر تانگے میں بیٹھ گئی تھی۔ عجیب بات تھی، ان کے نزدیک آتے ہی گھوڑا بتکنے لگا تھا، بڑی مشکل سے اسے قابو کیا تھا، اور پھر مجھے حیرت بھی ہوئی، ان کے پاس سے عطر، گلاب کی بے پناہ خوشبو آ رہی تھی، پوری طرح سے عطر چھڑکا گیا تھا انہوں نے خود پر۔ اور پھر میں یہ بھی جانتا تھا کہ آپ کے گھر والے مراد آباد جا چکے ہیں، آپ تنہا ہیں، اس لیے چھوٹے مرزا تھوڑی سی ناگواری محسوس ہوئی تھی ہمیں۔ پھر سوچا کہ بھائی اپنی اپنی زندگی ہے، بھلا ہماری کیا بساط کے کسی نوابزادے کی زندگی میں دخل دے۔ وہ لمحہ بھر کر رکا تھا، شاید وہ میرے چہرے پر اپنی بات کا رد عمل تلاش کر رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ واپس بھی تو آپ ہی کے ساتھ گئی تھی نا، ہے نا؟ شرف الدین نے بے چینی سے کہا تھا۔ ہاں، واپس بھی میرے ساتھ ہی گئی تھی، اور وہیں اسی قبرستان کی سڑک پر بالکل وہیں اتر گئی تھی۔ جب وہ سڑک پر اتری تھی تو اچانک کافور کی اتنی تیز خوشبو پھیلی کہ میں گھبرا گیا تھا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا، شاید وہ کرایہ دے رہی تھی، مگر چھوٹے مرزا ہمارا دل جانے کیوں اچانک پتے کی طرح سے لرزنے لگا تھا۔ ان خاتون کی دلیری پر مجھے حیرت ہوئی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ہم کرایہ چھوڑ کر آگے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی شرف الدین نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا آؤ۔ پھر وہ رکا نہیں، مجھے گھسیٹتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ ٹھہرنے کا وقت نہیں ہے، میری بات سنو۔ تمہاری اماں نے بتایا تھا کہ مرزا سلط بیگ نے مالک کی بیٹی خزرہ کے علاوہ نادر شاہ کی بیٹی عصمت جہاں کو بھی، ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ میں اچھل پڑا۔ ہاں، اب یاد آیا کہ عصمت جہاں کا نام سن کر میرے ذہن میں ایک عجیب سی چبھن کا احساس کیوں ہوا تھا۔ ہاں، مگر کچھ بھی نہیں، بات صاف ہو گئی ہے، یہ وہی عصمت جہاں تھی، اور وقار الحسن میری بات کو لکھ لو کہ ان کا تعلق رمزو بابا سے ضرور ہوگا، کسی نہ کسی طور پر، کسی نہ کسی طرح سے وہ اس معاملے میں ملوث ضرور رہے ہوں گے، اس لیے عصمت جہاں نے انہیں قتل کر دیا۔ لکھ لو، 100% یہی بات ہے۔ مگر شرف الدین رمزو بابا بنیادی طور پر بہت شریف آدمی تھے، میں ان کی شرافت پر شک نہیں کر رہا، مگر یہ بتاؤ کہ مرزا سلط بیگ کی بدماشیوں کے خلاف آواز اٹھانا کسی کے بس کی بات تھی؟ کس کے بس کی بات تھی بھائی؟ چاہے وہ کتنا ہی شریف کیوں نہ ہو، تم نے بتایا تھا کہ وہ انہی کے زمانے میں، نہیں میں یہ نہیں جانتا، ان کے زمانے میں اس وقت جب عصمت جہاں والا واقعہ ہوا ہے وہ حویلی میں تھے یا نہیں، بہرحال کچھ بھی ہو، رمزو بابا کے قتل کا معاملہ تو حل ہو ہی گیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ شکنتلا کے بعد اب عصمت جہاں کا بھی انتقام شروع ہو چکا ہے۔ ہوشیار ہے نا وقار الحسن، وہ بھی تم سے رابطے کے لیے بے چین ہے۔ وہ پھر شوق ہو گیا تھا، میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا، وہ ایسے خوفناک حالات میں بھی شوق ہو سکتا تھا، مجھے اس پر رشک آیا تھا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ عصمت جہاں بیگم کے معاملے میں تصدیق کر لی جائے تو اچھا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا تھا۔ یعنی یہ کہ قبرستان چلتے ہیں، عصمت بیگم نہ ملی تو ان کی قبر تو مل ہی جائے گی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ادھر جاؤں، بغیر جانے ہی میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ وہی عصمت جہاں تھی، مگر نامعلوم کیوں میں شرف الدین سے یہ بات نہ کہہ سکا۔ ہم بازار کی طرف نکل آئے، وہاں سائیکل رکشہ لے کر ہم قبرستان کو چل دیے۔ قبرستان کی دیوار شروع ہونے سے پہلے ہی پھول والے کی دکان تھی، شرف الدین نے سائیکل رکشہ وہیں رکوا لیا، اتر کر کچھ پھول لیے، اگربتی لی، اور ہم دونوں قبرستان کے اندر داخل ہو گئے۔ تم دائیں اطراف کی قبر میں دیکھو اور میں بائیں طرف نظر رکھتا ہوں، شرف الدین نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ میں دائیں جانب کی قبروں پر نگاہ رکھتے ہوئے آگے بڑھتا گیا۔ ہم 50 قدم ہی چلے ہوں گے کہ شرف الدین نے مجھے آواز دے کر اپنی جانب متوجہ کروا لیا تھا، وہ مجھے بلا رہا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ وہ عصمت جہاں کی قبر دیکھ چکا ہے، میرا دل بیٹھنے لگا تھا، میں تھکے تھکے قدموں سے اس کی طرف چل دیا تھا۔ حسب توقع وہاں عصمت جہاں کی قبر موجود تھی، مگر ایک غیر متوقع بات نے مجھے اور شرف الدین کو چونکا دیا تھا۔ وہ تازہ گلابوں کا گلدستہ، یوں لگتا تھا جیسے گلاب کے یہ تازہ پھول آج اور ابھی کسی نے رکھے ہیں، پھولوں کی پتیوں پر پانی کے قطرے ابھی تک چمک رہے تھے۔ ہم دونوں نے چونک کر چاروں طرف دیکھا تھا۔ یہ بات میرے لیے چنبے کا باعث یوں تھی کہ بقول اماں کے مالک کے خاندان کے سبھی لوگ یہاں سے ہجرت کر چکے تھے۔ اماں نے بتایا تھا کہ عصمت جہاں کی خودکشی کے بعد نادر شاہ ایک روز رات کے وقت چپکے سے یہ علاقہ چھوڑ گئے تھے۔ پھر ایسی صورت میں وہ کون تھا جس نے یہاں پھول رکھے تھے؟ میں یہ تمام باتیں سوچ رہا تھا اور شرف الدین اگربتی جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے 4 اگربتیاں جلا کر چاروں کناروں پر گاڑ دی اور اپنے ساتھ لائے ہوئے پھول اس گلدستے کے پاس رکھ دیے۔ پھر ہم نے فاتحہ پڑھی۔ اس دوران میں میری نگاہ قبر کے سہانے لگے کتبے پر پڑی تھی جس پر عصمت جہاں کا نام سنہری حروف میں چمک رہا تھا۔ ولدیت نادر شاہ لکھی تھی، گویا وہ غیر شادی شدہ تھی۔ اس لمحے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مرزا سلط بیگ کی نفرت سوا ہو گئی تھی۔ کیسا ظالم شخص تھا جس نے ایک جوان لڑکی کو موت کی گھاٹیوں میں اترنے پر مجبور کیا تھا۔
ہم فاتحہ پڑھ کر خاموشی سے اس راستے پر چلنے لگے جو باہر کی طرف جاتا تھا۔ میری طبیعت پر عجیب سا بوجھل پن تھا۔ شرف الدین بھی خاموش تھا۔ میں اسمت جہاں کے بارے میں سوچ رہا تھا اور مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ اگر حویلی آنے والی یہی خاتون تھی یا ان کی روح تھی تو وہ جھالا میرے لیے کیوں دے گئی تھی؟ کیا وہ جان چکی تھی کہ ہم رمزو بابا کی مٹھی میں دبا جھالا حاصل کر چکے ہیں؟ اگر ایسا بھی تھا تو بھلا دوسرا جھالا دینے کی کیا تک تھی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جھالا بھی ہمارے پاس سے غائب ہو جاتا۔ میں یہ سب سوچتا رہا مگر میں نے اس کا ذکر شرف الدین سے نہیں کیا۔ بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہم شرف الدین کے گھر پہنچے تو صبح کے 9:30 بج چکے تھے۔ اس کے ابا غصے میں بپھرے بیٹھے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کا رخ شرف الدین کی طرف تھا۔ کیوں میاں، یہ گلچھڑے کب تک اڑائے جائیں گے؟ ہاں، کب تک آوارہ گردیاں ہوں گی؟ جی وہ عارف، خبردار جو کوئی بات منہ سے نکالی۔ پھر وہ اچانک میری طرف پلٹے۔ میاں، کافی شریف سمجھتا تھا میں تو تمہیں، امید ہی نہیں تھی کہ اظہار الحسن کا بیٹا کبھی آوارہ گرد بھی ہو سکتا ہے۔ تم اسی لیے رکے تھے نا یہاں؟ نہیں خالو، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میری ٹانگیں کانپ اٹھی تھی۔ مجھے پہلی بار کسی نے اس طرح سے ڈانٹا تھا۔ میں نے سنا تو تھا کہ شرف الدین کے ابا بہت غصے والے آدمی ہیں مگر آج پہلی بار یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ اچھا، گویا اس میں بھی ہماری ہی سمجھ کا قصور ہے۔ آپ خود بڑے مقبول ہیں میاں، ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ خود بھی ذمہ داری کا احساس کرو اور دوسرے کو بھی کرنے دو۔ اتنا کہہ کر وہ پھر شرف الدین سے مخاطب ہوئے تھے۔ آج آپ مجھے امروہہ میں نظر نہ آئے، سمجھے؟ شمس کا تیسرا خط آ چکا ہے۔ شگفتہ رو رو کر ہلکان ہو چکی ہے۔ خاندان والے کیا سوچتے ہوں گے کہ شادی سر پر آ گئی ہے اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہنچا۔ پہلی شادی ہے اس گھر کی، کچھ ادب و اداب کی بھی سدھ بدھ ہے آپ کو؟ ابا، میں آج شام کی ٹرین سے جا رہا ہوں، شگفتہ سے کہہ دیا تھا کہ تیار رہے۔ وہ کئی روز سے تیار ہے، آپ کوئی فرصت نہیں آوارہ گردیوں سے؟ وہ داڑے تھے۔ ارے میں نے کہا ذرا بات تو سنیں۔ اندر انہوں نے بنا کر دروازے پہ پڑی چیخ اٹھائی تھی۔ کیوں؟ طرف داری کرنا ہوگی آپ کو اپنے لاڈلے کی۔ ارے اتنے بڑے لڑکے کو اس کے دوست کے سامنے ایسے ڈانٹ رہے ہیں، کچھ تو خیال کیجئے۔ وہ اتنا بڑا لڑکا اس دوست کے ساتھ آوارہ گردیاں کر رہا ہے، اسے تو کچھ خیال نہیں۔ خالہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ میں نے جلدی سے انہیں سلام کیا۔ السلام علیکم خالہ۔ انہیں کے پیچھے سیمی اور شگفتہ بھی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، خیال نہ کرنا، ان کا غصہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ جلسی ہو کر بولی تھی۔ پھر میاں سے مخاطب ہوئی۔ اب آ تو گیا ہے اور آج مراد آباد چلا بھی جائے گا۔ 5 دن میں 8ویں بار سن رہا ہوں۔ وہ بڑبڑائے تھے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ خالہ ان کے پیچھے آئیں۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی، پھر شرف الدین نے گہری سانس لی۔ دیکھ لیا تم نے؟ چھوڑیے بھیا جی، اچانک شگفتہ بول اٹھی تھی۔ وہ اب بھی دروازے کے قریب کھڑی تھی، اس کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ اس میں ان کا کیا قصور؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے بتا دیا تھا کہ لنڈن کے والد کو کسی نے قتل کر دیا ہے، وہاں گئے ہیں تو کہنے لگے کیا صاحبزادے اب جاسوسی کریں گے؟ میں ہنس پڑا۔ یہ تو شرلاک ہومز بنے ہوئے ہیں، راتوں رات نہ صرف انہوں نے رمزو بابا کے قتل کا معمہ حل کر دیا ہے بلکہ اور بھی کئی مسئلے نمٹا دیے ہیں۔ اچھا اب تم چپ رہو، وہ بھنا گیا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، اب پھوٹو یہاں سے اور حویلی جا کر اپنا سامان لے آؤ۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا، اب تو گھر سے باہر قدم بھی رکھا تو قیامت آ جائے گی۔ تم سامان لے کر یہاں پہنچو، شام کو یہیں سے اسٹیشن چلیں گے۔ بھیا جی، میں چائے کا پانی رکھ کر آئی تھی، آپ لوگوں نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا، شگفتہ بولی تھی۔ ہاں بھائی سوری، پہلے ناشتہ کر لو، شرف الدین نے جوتے اتارتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، صرف چائے پیوں گا، میں نے جواب دیا، اور شگفتہ یہ سنتے ہی باہر چلے گئی۔ مراد آباد میں کتنے دن رکنے کا پروگرام ہے؟ شرف الدین نے سوال کیا۔ میں تو زیادہ دن رکنا نہیں چاہتا، یہ تو تم پر منحصر ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم وہاں سے علی گڑھ چلے جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ داخلہ نکل جائے، میں نے جواب دیا۔ اس کا انتظام میں کر چکا ہوں، تم فکر نہ کرو، تمہارا داخلہ ہو جائے گا، فارم میں نے منگوا لیا ہے، وہ بھر دینا۔ اب مجھے اپنا پروگرام بتاؤ تاکہ کچھ طے کیا جا سکے۔ میں جے پور جانا چاہتا ہوں، وہاں جا کر کیا کرو گے؟ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ شکنتلا کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا، مثلاً یہ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اب کیا کیا جائے کہ وہ اوہو بھائی، فضول باتیں نہ کرو، تم جانتے ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیا کیا جائے۔
जवाब मेरे ख्याल में तुम्हें तुम्हारी अम्मा ही देंगी। रमजू बाबा की बात भूल गए तुम? उन्होंने कहा था कि तुम्हारे अब्बा चांद की 14 को कुएं पर जाते रहे हैं, ऊपर की मंजिल पर भी रातें गुजारते रहे हैं, और ये बात तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें नहीं बताई। फिर वो ये प्रकाश वाली बात, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी अम्मा ने अपने हाथों से उसे। आगे कुछ कहने से पहले ही उनकी हालत खराब हो गई थी। इस अधूरी बात को भी तुम्हारी अम्मा ही मुकम्मल कर सकती हैं। और हाँ, ये असमत जहाँ वाला मामला उन्हें ज़रूर बताना, शायद वो इस सिलसिले में कुछ बता सके। जाले है ना तुम्हारे पास? हाँ, मैंने अंदरूनी जेब को छूते हुए जवाब दिया था। मगर मैं जयपुर जाना चाहता हूँ शरफुद्दीन। इस तरह हम कम से कम इसके खानदान वालों से मिलकर ये तो बावर करवा देंगे कि हमें उनसे हमदर्दी है। हम शकुंतला की मदद करना चाहते हैं। वकारुल हसन, तुम्हारे हमदर्दी से उनका नुकसान पूरा नहीं हो सकता, और वो भी इतने बरसों बाद। अब तो शायद उनका गम भी हल्का हो चौका होगा। बल्कि ये भी मुमकिन है कि कोई वहाँ तुमसे पूछे कि जी कौन शकुंतला? इन लोगों का तो इस मामले से अब कोई ताल्लुक नहीं है। इसके भाई बहन या माँ बाप जाने जिंदा भी होंगे या नहीं। वैसे भी इतने अरसे बाद जाकर उनकी ताज़ियत करना, इसकी ताज़ियत करना उनके गम को करेदना है, इनके दुखों को बेदार करना है। मेरी मानो तो बस शकुंतला से ही ताल्लुक रखो। मेरा मतलब है कि उसे सुकून पहुंचाने की तरकीब करो। मैं खुद तुम्हारी अम्मा से बात करूंगा। मैं उसकी बातों से उलझन का शिकार हो गया था। उसकी बात वाकई दुरुस्त थी। यह भी मुमकिन है कि वहां जाना महज वक्त का ज़िया होता। मैं खामोश हो गया और खुद को हालात के दायरे पर छोड़ दिया। शगुफ्ता चाय ले आई। मैंने चाय पी और जाने को खड़ा हो गया। शगुफ्ता ने मुझे तन्हा जाते देखकर खौफ का इजहार किया था। अरे इसकी परवाह ना करो भाई, इस पर तो वो बहुत मेहरबान है। ऐसे मेहरबान होती है जैसे महबूब पर होती है। रूह आशिक हो गई है इस पर। इसका तो अब कोई बाल भी गीला नहीं कर सकता। शरफुद्दीन की बात सुनकर शगुफ्ता के चेहरे पर एक रंग सा आकर चला गया था। मुझे शरफुद्दीन की बात बड़ी बुरी लगी थी। मैं बेचैन हो गया मगर कुछ कह न सका। शगुफ्ता आहिस्तगी से उठी थी, चाय की ट्रे में खाली कप रखी और बाहर चले गई। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में बेच लिया था। मैं बोझल सा दिल लिए खड़ा हो गया। शरफुद्दीन से रुखसत होकर मैं सीधा हवेली पहुंच गया था। अम्मा के कमरे में मेरे कपड़े रखे थे। मैं नहाया, कपड़े बदले और 2 जोड़े छोटे बैग में रख लिए। अपनी ज़रूरत की चंद और चीज़ें रखी और फिर अचानक मुझे इस कड़े का ख्याल आया जिसे मैंने अपने कमरे में रखे बक्स में रखा था। मैंने सोचा कि इसे ले जाना तो बेकार है, मगर मैं उसे एक नज़र देकर इत्मीनान करना चाहता था। अम्मा ने मुझे अपने कमरे में ना आ जाने की ताकीद की थी, मगर मैंने चाबियां ली और अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। ताला खोलते हुए लम्हा भर को मेरे दिल में खौफ सा बढ़ गया था। गंगवा की मौत का मंजर आंखों में घूम गया था। वो सुनहरा और मकनातीसी कशिश वाला सांप ज़हन में लड़ा गया, मगर मैंने हिम्मत न हारी। दरवाज़ा खोला। कमरा अजीब सी खुशबू से महक रहा था। साफ सुथरा कमरा देखकर मुझे हैरत हुई थी। मेरे मसहरी के दाएं जानिब बॉक्स रखा था। मैं सीधा उस तरफ गया। बॉक्स खोलकर देखा। मैंने वो कड़ा तलाश किया, मगर वो कपड़ों के बिल्कुल नीचे रखा था। इसके साथ ही दांत का सफेद रंग का मुजस्मा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके सिरे पर खून जमा हुआ था। ये वही मुजस्मा था जिसे मैंने इस रोज मिर्जा सुलत बेग के कमरे में देख चुका था। मैंने घबराकर बॉक्स बंद कर दिया। मेरी पेशानी पर पसीना उभर आया था। मैंने बॉक्स बंद किया और इसमें ताला डाला। कमरे में एक ताहिराना निगाह डालकर मैं बाहर निकल आया। अम्मा के कमरे में वापस आया तो नामालूम क्यों ऐसा लगा जैसे अभी अभी यहाँ कोई था। मैंने चारों तरफ देखा। कोई ऐसी बात ना थी जिसे मैं किसी की मौजूदगी का सबूत समझता, मगर फिर भी किसी के आने और चले जाने का एहसास रहा। जो बैग मैं अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर चुका था वो वैसे ही रखा था। मैंने उसे उठाया और कमरे को बंद कर बाहर आ गया। हवेली का बड़ा गेट भी मैंने बंद किया, ताला डाला और फिर पान वाले बाबा के पास पहुंच गया। उन्हें मैंने बताया कि मैं मुरादाबाद जा रहा हूँ। वो ये सुनकर खुश हो गए थे। उन्होंने सबको सलाम अलैकुम कहने की ताकीद भी की। फिर मैं शरफुद्दीन के घर की तरफ चल पड़ा। दिन के 11 बज चुके थे। मैं शरफुद्दीन के घर पहुंचा तो वो मेरा ही मुंतजर था। शगुफ्ता उसके करीब बैठी थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। सच? क्या आप भी चलेंगे? उसने बच्चों की तरह खुश होते हुए पूछा था। जी। मैं जहानी आपा से मिलने को बेचैन थी। वो तो जाते हुए मिलकर भी नहीं गई। आप मुझे उनसे मिलाने ले चलिएगा। ओके, जरूर। वो मुझे आपसे मिलकर खुश होंगी। भैया ने सब कुछ बता दिया है। सच? कितना खौफनाक है ये सब कुछ। और आपको डर नहीं लगता?
पहले लगता था, अब तो समझे डर डर कर बेहिस हो गया हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा था। अच्छा चलो अब खाने का इंतज़ाम करो, हमने नाश्ता भी नहीं किया है, और हाँ रास्ते के लिए खाना ले लेना, ओके। शरफुद्दीन की बात सुनकर शगुफ्ता खड़ी हो गई थी। अम्मा पराठे पका रही हैं, कलेजी भून ली है और आलू पालक की भुजिया भी बना ली है, ये हम साथ ले जाएंगे, उसने कहा और एरियो पर घूमकर बाहर चले गई। और मुरादाबाद जाने पर बेहद खुश थी। हमने खाना खाया, कुछ देर आराम किया और अमरोहा से शाम 7 बजे ट्रेन चलती थी जो रात 11 साढ़े 11 बजे तक मुरादाबाद पहुंचा देती थी। यूँ तो वहाँ से बसें भी चलती थी, मगर ट्रेन का सफ़र महफूज तरीन सफ़र था। शरफुद्दीन के अब्बा ने सख्ती से तकीद की थी शगुफ्ता के साथ ट्रेन में सफ़र किया जाए, पूरी बोगी का किराया देकर बोगी ली जाए और दरवाजे और खिड़कियां एहतियात से बंद करके तमाम सफ़र तय किया जाए, वरना अगर हम बस से सफ़र करते तो शायद 2-2.5 घंटे में मुरादाबाद पहुंच जाते। खुद शगुफ्ता को भी ट्रेन का सफ़र पसंद था। वहाँ बेचारी लड़कियां कई बरसों में तो ट्रेन में बैठा करती थीं। शगुफ्ता को भी शादी की तकरीब में शिरकत से ज़्यादा ट्रेन में सफ़र करने की खुशी थी। वो उड़ी उड़ी फिर रही थी, उसने सारी तैयारी कर ली थी। अब्बा घर पर ही मौजूद थे और वो दोबारा बैठक में जानकर शरफुद्दीन की मौजूदगी का यकीन कर चुकी थी। एक बार तो आकर ये पूछ चुके थे कि ये साहबजादे वहाँ भी तुम्हारी दुम छल्ले बने रहेंगे, जिस पर शरफुद्दीन ने बताया कि मैं स्टेशन से अपने ताया के घर चला जाऊंगा। इस पर वो कुछ बड़बड़ाते हुए चले गए थे और बाहर जाते ही खालानों ने डांटा था। उनका जुमला मुझे और शरफुद्दीन को साफ सुनाई दिया था। उन्होंने कहा था, अरे क्या सटिया गए हो, क्यों बच्चे के पीछे पड़ रहे हो, अपनी माँ के पास जा रहा है और फिर अच्छा ही तो है, रात का सफर है, बच्चे अकेले सफर करते तो दिल होलता रहता, दूसरे का साथ भी हो गया, मुझे भी इत्मीनान रहेगा, उन्होंने कहा। उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया ये पता ना चल सका था। खाने के बाद चाय पीकर हम काफ़ी ताज़ा दम हो चुके थे। मैं और शरफुद्दीन बैठे बातें करते रहे और ये सारी बातें कॉलेज से मुतल्लिक थी। थोड़ी देर के लिए हम हवेली और इसके पुरस्कार वाक़यात को कतईन भूल गए थे। वक्त गुजरता गया, शगुफ्ता की बेचैनी बढ़ती चली गई थी। वो बार बार आकर पूछ रही थी कि हम कब चलेंगे। मैं इसके बचपने पर हंस पड़ा था और शरफुद्दीन अपने बाल नोचने लगा। बाबा ट्रेन का वक्त होगा तो इससे घंटा भर पहले ही निकलेंगे, क्या अभी से जाकर बैठ जाएं? और वो जुबान दांतों तले दाबकर जल्दी से लौट जाती। शाम 6 बजे हम तैयार हो गए थे। शरफुद्दीन तांगा ले आया था। शगुफ्ता ने बुर्का पहन लिया था। मैं उसे बुर्के में देखकर शशदर रह गया था। यूं लग रहा था जैसे स्याह बादलों से 14वीं का चांद झांक रहा हो। उसके रुखसार पर तमतमाहट थी, आंखों में जैसे ढेरों जुगनू उड़ रहे थे। खाला ने उसे हजारों नसीहतें की थी, फिर शरफुद्दीन को उसका ख्याल रखने और खानदान में इज्जत को बट्टा ना लगाने की तकीद भी की थी और मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं भी इन दोनों का ख्याल रखूं और बिलखसूस शरफुद्दीन को ज्यादा देर घर से बाहर ना रहने दूं। खालू को शायद खाला ने अंदर ही रहने को कह दिया था जब भी वो बाहर नहीं आए थे। शगुफ्ता और शरफुद्दीन अंदर जाकर ही उन्हें अस्सलाम वालेकुम कहकर आए थे। मैंने शरफुद्दीन से भी अपना सलाम कहलवा दिया था। हम वहाँ से रवाना हुए और 12-13 मिनट बाद ही स्टेशन पहुँच गए थे। ये ट्रेन बहुत आहिस्ता चलती थी और रात के वक्त चलती थी, इसलिए इस पर रश बिल्कुल भी नहीं होता था। इसलिए शरफुद्दीन ने इस ट्रेन का इंतखाब किया था। हम टिकट लेने पहुँचे तो कोपे का मसला भी हल हो गया था। एक कोपे में 4 आदमियों की गुंजाइश होती थी। ये मखसूस कोपे होता थे। शरफुद्दीन ने उसे बुक करवा लिया था। हमारे पास सामान ज़्यादा नहीं था, इसलिए हम अपना सामान लिए खुद ही कोपे में बैठ गए थे। मैंने स्टेशन से सुराही लेकर इसमें पानी भर लिया था। शगुफ्ता भी अपना खुश थी। मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ें साथ ले ली। ये चीज़ें मैंने स्टेशन ही से खरीद ली थी। 7 बजे ट्रेन रवाना हुई तो शगुफ्ता खिड़की में बैठ गई। मैं और शरफुद्दीन बातें करने लगे थे। कुछ देर बातें करते रहे, फिर मुझे तो नींद आ गई। हम तमाम रात के जागे हुए थे। दिन में भी सोने का मौका न मिला था। मैं ऊपर वाली बर्थ पर चला गया था। शरफुद्दीन को मैंने ताकीद कर दी थी कि वो ना सोए। मैं घंटा भर बाद उठ जाऊंगा और फिर वो सो ले। मैं नहीं चाहता था कि हम दोनों शगुफ्ता को यूं तन्हा छोड़कर सो जाए। उसकी आंखों में तो दूर दूर तक नींद का नामो निशान ना था। मैं बर्थ पर जा लेटा। शरफुद्दीन वही शगुफ्ता के पास बैठा रहा। मुझे बेपनाह नींद और थकन थी। मैं लेटते ही गाफिल हो गया था। आंख खुली तो यूं लगा जैसे कोई अनहोनी बात हुई है। मैं चंद लम्हे तो यूं ही लेटा छत को तकता रहा। हल्के हल्के झटकों की वजह से लग रहा था कि ट्रेन चल रही है, लेकिन मैं
इन झटकों की वजह से नहीं उठा था। मेरे बदन में अजीब किस्म की सनसें सी फैली हुई महसूस हुई। मैं झटके से उठकर बैठ गया। बोगी में गहरी खामोशी थी। मैंने झुककर नीचे देखा। शगुफ्ता सीट पर गुठरी सी बनी सो रही थी। सामने की बर्थ पर शरफुद्दीन खराटे ले रहा था। मैं फिर अपने जाग जाने की वजह तलाश करने लगा। इस वक्त मुझे एक करासी सुनाई दी थी। मैं उछल पड़ा। यह आवाज़ मेरे बिल्कुल बिलमुकाबिल ऊपर की बर्थ से आ रही थी। बोगी में हर तरफ अंधेरा था। सिर्फ हमारी तरफ का छोटा सा बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी बहुत कम थी। मैंने आंखें फाड़कर इस बर्थ पर देखा। कोई स्याह कंबल में लेटा हुआ था। मैं तेज़ी से नीचे उतरा। मैंने शरफुद्दीन को जगाना चाहा। इस वक्त फिर कोई कराहा था। आवाज़ मर्दाना थी। वो पानी मांग रहा था। मैं इस वक्त ये भूल गया कि हम पूरी बोगी बुक करवा चुके हैं। इसके पानी मांगने पर मैं शरफुद्दीन को जगाए बगैर सराय की तरफ पलटा, जो शगुफ्ता की सीट के नीचे रखी थी। मैंने गिलास में पानी निकाला और इस बर्थ के करीब पहुंच गया। वो शख्स फिर कराहा था और फिर उसने पानी मांगा था। शायद वो बीमार था। मैंने धीरे से पुकारा था, लीजिए, पानी लीजिए। मेरी आवाज़ सुनते ही उसने अपने चेहरे पर से कंबल हटा दिया। मुझे यूं लगा जैसे पत्थर का हो गया हूँ। इसके चेहरे पर खाल नहीं थी। इतनी कम रोशनी में मुझे उसका चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। चेहरे पर गोश्त और चर्बी के सिवा कुछ भी ना था। सिर्फ काली काली बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं। ना होठों पर खाल थी, ना चेहरे पर। मैं गिलास लिए बगैर पलट गया और शरफुद्दीन के बराबर जा बैठा। मेरी टांगें कांप रही थीं। खौफ से आवाज़ बंद हो गई थी। मैंने शरफुद्दीन को बुलाया। वो चौंक कर उठ बैठा। मैंने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया था। वो परेशान हो गया। फिर मैंने उंगली से इस बर्थ की तरफ इशारा किया। जो ही शरफुद्दीन की निगाह उस पर पड़ी, वो उछल कर खड़ा हो गया था। कौन है ये? उसने आहिस्ता से पूछा था। पता नहीं, शायद ये रास्ते में चढ़ा है, अभी उतारता हूँ। वो इस तरफ बढ़ने लगा, मगर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं शरफुद्दीन, उसके करीब मत जाना, शायद उसे कोई खतरनाक बीमारी है। फिर मैंने उसे बताया कि उसके चेहरे की खाल छिड़ चुकी है। मैंने उसे करीब भी जाने नहीं दिया कि जाने कैसी बीमारियां लग ही ना जाए। वो वापस बैठ गया। शगुफ्ता अभी भी सो रही थी। मैं और शरफुद्दीन हैरान परेशान बैठे इस कमर में लिपटे शख्स को देख रहे थे। ऐसे तो सफर नहीं काट सकता, शरफुद्दीन ने झुंझला कर कहा था। अगले स्टेशन पर हम जगह बदल लेंगे। मेरा ख्याल है कि अब ज्यादा सफर बाकी नहीं रहा। मैंने सरगोशी की थी। क्यों? हमने ये बोगी क्या इसके लिए बुक करवाई थी? उसने नथ ने फुलाकर कहा था। छोड़ो यार, ये बीमार आदमी है। उसे उठाने, उसे समझाने में कहीं मुसीबत गले ना पड़ जाए। ट्रेन आदमी से ज्यादा खाली है। हम किसी और बोगी में चले जाएंगे। वो चुप होकर खिड़की से बाहर देखने लगा। इतनी देर में शगुफ्ता भी उठ गई। उसे अपने सो जाने पर बड़ा अफसोस हुआ। वो फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। उसने खाना निकालने के लिए कहा, मगर मेरा जीना चाह। इस आदमी को देखने के बाद से मुझे बुकाइयां सी आ रही थी। शरफुद्दीन ने उसे बताया कि हम बोगी तब्दील कर रहे हैं, वहाँ खाना खाएंगे। वो हैरान हुई, मगर कुछ बोली नहीं। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक फाटक से पहले रुक गई। मैंने फौरन उतरकर ट्रेन के अगले डिब्बे को देखा। वो खाली था। मैंने शरफुद्दीन से कहा कि वो सामान खिड़की से मुझे दे दे। इसने सामान मुझे दे दिया, जिसे मैंने अगले डिब्बे में मुंतकिल कर दिया। मेरे पीछे शरफुद्दीन भी शगुफ्ता को लिए इस डिब्बे में आ गया। हमने घूमकर सारी सीटों को देखा। डिब्बा पूरा खाली था। शरफुद्दीन ने दोनों तरफ के दरवाजे लॉक कर दिए। यहाँ रोशनी कुछ ज्यादा थी। हम सीट पर बैठ गए। शगुफ्ता खाना निकालने लगी। इसने सीट पर ही दस्तरखान बिछाकर खाना लगा दिया था। मैं और शरफुद्दीन बारी बारी हाथ धोकर आ गए थे। शगुफ्ता हाथ धोने चले गई। मैं प्लेट में सालन निकालने लगा। इस वक्त मैं और शरफुद्दीन उछल पड़े। शगुफ्ता के चीख ने हमारे औसान उड़ा दिए थे। हम दोनों उठकर उस तरफ भागे थे जिस तरफ शगुफ्ता गई थी। वहां पहुंचते ही मेरे और शरफुद्दीन के मुंह से भी चीख निकल गई थी। वहां वही शख्स खड़ा था जिसके चेहरे पर खाल ना थी। लाल लाल गोश्त और सफेद चर्बी साफ नजर आ रही थी। वो मुलगजी सी रोशनी में बड़ा दहशतनाक और खौफनाक लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी सियाह आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। शरफुद्दीन को तो जैसे सख्ता सा हो गया था। मैं इस कदर होश में था कि मैंने शगुफ्ता को झूमते और बंद आंखों से एक जानिब झुकते देखा तो लपक कर उसे थाम लिया था। वो बेहोश हो चुकी थी। अगर मैं उसे ना थाम लेता तो वो नीचे गिर चुकी होती। कौन हो तुम? मैंने अपने लहजे की कपकपी पर बड़ी मुश्किल से काबू पाते हुए पूछा था। वो किसी मुजस्मे की तरह खड़ा मुझे तक रहा था। उसने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया। उसने कंधों पर स्याह कंबल डाला हुआ था। उसके बालों की लंबी लंबी गुनगुनारी लिटें उसके कंधों को छू रही थी। मेरी निगाह उसके सरापे का जायजा ले रही थी। फिर जो ही मेरी निगाह उसकी नंगी पंडलियों पर और फिर पैरों पर पड़ी तो मैं लरस कर रह गया।
पंडली और पैरों पर भी खाल नहीं थी। नाखून नोचे हुए लग रहे थे तो इन पर खून छलक रहा था। मेरा पूरा बदन कांपने लगा था। शगुफ्ता के बोझ ने मेरा एक बाजू और कंधा शाल कर दिया था। शरफुद्दीन किसी पत्थर की तरह खड़ा था। मैंने दूसरे हाथ से शरफुद्दीन को झंझोड़ा, मगर वो यूं हिला और फिर साकत हो गया, जैसे कि गोश्त पोस्त का ना हो बल्कि प्लास्टर का बना हो। खौफ से मेरी कनपट्टियों में धमाके से होने लगे थे। तन्हा रह जाने के एहसास ने मुझे कुछ मजबूत कर दिया, और यह एहसास कि अब जो कुछ भी करना है मुझे को करना है, मेरे कुछ हौसले बढ़ा गया। मैं उल्टे कदमों चलते हुए पीछे की सीट के करीब पहुंचा और शगुफ्ता को बेहोश बदन को सीट पर डाल दिया। मैंने उसे पुश्त की सीट से टिकाकर बिठाने की कोशिश की थी, मगर वो एक जानिब को लुढ़क गई थी। उसके बोझ से आज़ाद होते ही मैं फिर इस शख्स की तरफ मुतवज्जो हुआ था, जो अब भी साकत खड़ा मुझे तक रहा था। नामालूम क्यों मैंने उसकी आंखों में अपने लिए दोस्ताना चमक महसूस की थी। एक मुलायम सी चमक थी उसकी आंखों में। बाकी चेहरे पर तो निगाह डालते ही जुड़जुड़ी सी दौड़ जाती थी। मैं एक कदम आगे बढ़ा। तुम कौन हो? और मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। खिड़कियां और दरवाजे सब बंद थे। ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। तुम इस बोगी में कैसे आ गए? पानी उसके उधरे हुए होंठ हिले तो एक अजीब सी कराहत सी सीने में बल खाने लगी। मैंने चंद लम्हे सोचा, फिर सुराही की तरफ बढ़ गया। गिलास में पानी लेकर मैं वापस आया तो वहाँ शरफुद्दीन साकत खड़ा था। शगुफ्ता सीट पर औंधी पड़ी थी और इन दोनों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। वो उधरी खाल वाला शख्स जाने कहाँ गायब हो चुका था। खौफ के मारे मेरी गिग्गी बंध गई थी। हालांकि उसके सामने मैं खुद पर काबू पाए रखा था। न जाने कौन सी ताकत थी जिसने मुझे उसके सामने संभाले रखा था। मैं उससे मुखातब भी हुआ था, बल्कि इसने काफी देर मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा भी था। गिलास का पानी छलकने लगा। मेरे जिस्म पर तारी लर्जा कब कभी में बदल गया। मुझसे खड़ा न रह गया तो मैं शगुफ्ता वाली सीट पर टिक गया। गिलास मैंने नीचे रख दिया था। मैं नहीं जानता, मुझे अंदाजा नहीं कि मैंने खुद पर कितनी देर में काबू पाया था। नॉर्मल होते ही मैं शरफुद्दीन के तरफ बढ़ा था। वो अब भी इसी पोजीशन में खड़ा था, पटी पटी आंखों से खला में तक रहा था। उसका चेहरा सपाट और आंखें वीरान बल्कि बेजान सी लगी थी। तो एक कड़कनाक एहसास से मुझे दहला दिया था। मैंने अक्सर फिल्मों में देखा था कि किसी को इस तरह से खड़े खड़े या बैठे बैठे सख्ता हो जाता है, और जैसे ही इसे छुआ जाता है वो एक जानिब लुढ़क जाता है। लम्हा भर को मेरा दिल कांप उठा था। शरफुद्दीन की अम्मा का जुमला कानों में गूंज उठा था। आप क्यों बोले जाते हैं? बच्चे अकेले जा रहे हैं, वो साथ होगा तो दूसरे का साथ हो जाएगा भाई, और फिर मुझे इत्मीनान रहेगा। वो मुतमईन हो गई, मगर मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? क्या बताऊंगा कि शरफुद्दीन को हुआ क्या था? शगुफ्ता बेहोश है, बोगी के दरवाजे बंद है और यहाँ मेरे सिवा कोई दूसरा है भी नहीं, और मुझे चक्कर सा आ गया। और फिर जो ही मेरा हाथ इसके हाथ से टकराया, यूं लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो मुझे भी और शरफुद्दीन को भी। मेरे साथ वो भी उछल पड़ा हो। वक़ारुल हसन, वो एकदम चीख उठा। मैं उसे जिंदा सलामत देखकर आप दीदा हो गया था। उसने पहले चारों तरफ देखा, फिर शगुफ्ता को सीट पर औंधे देकर उसकी तरफ लपका। क्या हुआ है इसे? हाँ, वो कहाँ है? किधर गया? वो वहशत ज़्यादा सा चारों तरफ घूम रहा था। तुम इसे देखो। ओ, वो अब यहाँ नहीं है, मैंने नीचे से गिलास उठाते हुए कहा था। उसने चौंक कर मुझे देखा, फिर जैसे बात उसकी समझ में आ गई थी वो शगुफ्ता की तरफ मुतवज्जो हो गया। मैंने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। इसने पहले शगुफ्ता की नब्ज़ देखी, फिर उसके चेहरे पर पानी के छींटे डाले, हाथ भिगोकर उसके चेहरे पर फेरा। मेरी निगाहें शगुफ्ता के चेहरे पर जमी हुई थी। उसका रंग जर्द था, फिर भी उसके हुस्न में कोई कमी ना आई थी। लंबी लंबी स्याह पलकें साकत थी। चेहरे पर पानी के कतरे मोतियों की तरह से चमक रहे थे। बालों की भीगी हुई लिटें उसके माथे पर चिपकी हुई थी, और भीगे हुए होंठ पूरे वजूद में एक कैफ सी सनसनी सी फैला रहे थे। माफ़ कीजिएगा, मैं खुद भी ऐसे हालात में अपनी इस कैफियत पर हैरान और परेशान हुआ था। यकीनन आप भी सोच रहे होंगे कि आदमी ऐसे हालात में भला ऐसी कैफियत से कैसे दो चार हो सकता है, मगर मेरे साथ ऐसा हुआ था। और मैं क्योंकि पूरी ध्यानदारी से अपनी हैरत अंगेज बीती लिखना चाहता हूँ, इसलिए अगर कहीं आपको कुछ नागवार भी गुजरे तो माफ़ कर दीजिएगा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि शगुफ्ता का हुस्न जिस कदर मैंने उस वक्त देखा और महसूस किया था, शायद अब से पहले महसूस नहीं कर सका था। उसकी सितारा आंखें चमक रही हों तो नजर उसके चांद चेहरे पर ठहरती नहीं है। फिर अब से पहले मैंने जब भी देखा था तो फासले से या फिर चोर निगाहों से देखा था, मगर इस वक्त शरफुद्दीन के साथ ही मैं भी उस पर झुका हुआ था। शरफुद्दीन बेहद परेशान लग रहा था। शगुफ्ता के चेहरे पर बार बार पानी के छींटे मारता और फिर मुझे बेबसी से देखने लगता, मगर मेरे अंदर कोई इज़्तिराब ना था। अजीब सा इत्मीनान था, जैसे कुछ भी ना हुआ हो। मैंने इसकी नब्ज़ देखी, वो नॉर्मल थी। शायद बहुत खफीफ सा फर्क रहा था,
जिसे मैं नोट ना कर सका था। मैंने सुरनाज पढ़ी और शगुफ्ता के चेहरे पर फूंक मारी। मुझे इस वक्त अम्मा की बात याद आ गई थी। वो हमेशा ताकीद करती थी कि खौफ में सुरनाज पढ़ा करो, आयतल कुर्सी पढ़ा करो। वकारुल हसन, शगुफ्ता को अभी शरफुद्दीन की बात पूरी भी ना हुई थी कि मैंने शगुफ्ता की पलकों को लड़स से देखकर उसे इशारा किया था। वो शगुफ्ता की तरफ मुतवज्जो हो गया था। वो होश में आ रही थी। कुछ देर उसकी लंबी स्याह पलकें लरसती रहीं, फिर उसने आंखें खोल दी। मुझे यूं लगा जैसे अंधेरे में अचानक ही कुमकुमे से रोशन हो गए हों। कैसी हैं आप? मैं एकदम बोल उठा था। वो खामोश और हैरान निगाहों से कभी मुझे और कभी शरफुद्दीन को देखती रही, फिर अचानक उठकर बैठ गई। क्या हुआ? क्या हो गया था मुझे? वो हैरानी से पूछ रही थी। फिर उसने जल्दी से खुद को 3 गज के दुपट्टे में लपेट लिया था। शायद उसे एहसास हो गया था कि यूं बेसुध और खुद से बेगाना पड़ी थी वो। उसके सवाल पर मैंने और शरफुद्दीन ने एक दूसरे को चौंक कर देखा था। फिर मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, वो अब भी हमें देख रही थी। फिर उसने चारों तरफ देखा। वो दरवाजे के साथ वाली सीट पर थी, जबकि हम लोग पिछली बर्थ पर बैठे थे। हमारा सामान वगैरह वही था। मैं यहाँ कैसे आई? उसने फिर हैरत से पूछा था। फिर वो दोनों हाथों में सर थाम कर बैठ गई। मेरा दिल धड़क उठा था, वरना इससे कबल उसकी हैरत देखकर मैं मुतमिन हो गया था कि वो सब कुछ भूल चुकी है। उसे इस हैबतनाक शख्स का चेहरा याद नहीं, और ये मेरे लिए खुश आइंदा बात थी, वरना वो डरती रहती और हमारा ये सफर परेशानी में कटता। तुम वो शरफुद्दीन ने कुछ कहना चाहा, मगर मैंने उसकी बात काट दी थी। शायद आपको चक्कर आ गया था, या शायद। ओ हाँ, वो चौंक उठी थी। मैं फिर डर गया, मगर उसके चेहरे पर खौफ का तासुर बिल्कुल ना था। मैं हाथ धोने गई थी। मैंने गुस्ल खाने का दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो पहले तो खुला नहीं, फिर एकदम से झटके से खुल गया। मैं अपने ही जोर में आगे बढ़ी। फिर शायद वो मेरे सर से टकरा गया था। मेरे सर पर चोट लग गई थी। अल्लाह, अभी तक ठेस ही उठ रही है। उसने सर को दाएं तरफ से दबाकर कहा था, और मैंने इत्मीनान बड़ा गहरा सांस लिया था और शरफुद्दीन को आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा कर कर कहा था, चलो भाई, भूख लग रही है, फिर मुरादाबाद भी शायद आने वाला है। शरफुद्दीन और शगुफ्ता खड़े हो गए थे। शरफुद्दीन की आंखों में बेपनाह उलझन थी। उलझन होना भी चाहिए थी। मैं और वो दोनों ही इस शख्स को देख चुके थे, जबकि शगुफ्ता इसको देखकर ही चीखी थी, और वो गुस्सा खाने की तरफ तो अभी मुड़ी ही नहीं थी। फिर इसकी सुनाई हुई कहानी शरफुद्दीन को हैरान होना ही था। खुद मैं भी इस कहानी पर हैरान था और मुसलसल गहरी निगाहों से उसके चेहरे का जायजा ले रहा था। उसके चेहरे पर सिवाय मासूमियत की सुनहरी चमक के कुछ भी ना था। शायद वो इसलिए ऐसा कह रही हो कि हम घबरा ना जाए, ये ख्याल आया, मगर फिर फौरन ही मैंने उसे रद्द कर दिया था। अव्वल तो वो इतनी पुख्ता ज़हन या पुख्ता उम्र की है नहीं थी कि अपना खौफ छुपाकर हमें घबराहट से बचाती, और ना ही वो चालाक और गाग थी कि किसी भी वजह से इस मामले को गोल कर जाती। अब एक ही बात रह गई थी कि वाकई वो सब कुछ भूल गई है, और वाकई उसे वही सब कुछ याद ना हो, और वो याद हो जो उसने हमें बताया है। अब तो कुछ भी हो सकता था, कोई भी अनहोनी बात, नाकाबिले यकीन वाकया, हादसा, सानहा, कुछ भी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो बंद बोगी में आया था, जिस तरह से गायब हो गया था। मैं ये सोचता हुआ अपनी सीट पर आ गया, जबकि शरफुद्दीन शगुफ्ता का बाजू थामे हुए वहां ले आया। खाना निकला हुआ था। शगुफ्ता ने सुगर लड़कियों की तरह हमें प्लेटों में खाना निकाल कर दिया। रोटी रखी और खामोशी से खाना खाने लगी। मेरी भूख उड़ गई थी, मगर फिर भी मैंने नवाले तोड़े। शरफुद्दीन भी बड़ी बेदिली से नवाले चबा रहा था। मैं जानता था कि उसकी हालत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं होगी। जबकि शगुफ्ता बड़े इन्हमाक से खाना खा रही थी, मेरी तरह शरफुद्दीन भी उसे बार बार देख रहा था। मुझे लग रहा था जैसे सदियां गुजर गई हों। ट्रेन अच्छी खासी रफ्तार से चल रही थी। हमें सफ़र करते हुए, यानी ट्रेन को अमरोहा से रवाना हुए शायद 2.5-3 घंटे तो हो ही गए थे, मगर दूर दूर तक किसी आबादी का नामो निशान ना था। मैंने खिड़की के शीशों से बाहर झांका। दोनों जानिब अंधेरा था और लकदक वीराना था। ट्रेन में होने वाली रोशनी जमीन पर हमारे साथ साथ तेज रफ्तारी से चल रही थी। सिवाय ट्रेन की छिक 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 के कोई आवाज ना थी। नामालूम क्यों इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी ट्रेन खाली हो। मैंने खिड़की का शीशा भी चढ़ा दिया और झांक कर बाहर देखा था, कहीं किसी की मौजूदगी में सोचना हुई। जमीन पर पड़ने वाली रोशनी सिर्फ हमारी खिड़कियों ही की ना थी, बल्कि दूर तक तमाम ही खिड़कियों की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी, जबकि सिर्फ मेरा और सामने खिड़की के करीब बैठे शगुफ्ता का साया ही इन 2 खिड़कियों के अक्स में नजर आ रहा था। जबकि जमीन पर पड़ने वाली पूरी ट्रेन की तमाम खिड़कियों की रोशन चौखटे खाली थे। मुझे अपने बदन में चूंटियां सी रेंगती महसूस हुई। दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। ये ख्याल ही दिल डुबोने को काफी था कि अगर जो कुछ मैंने महसूस किया वो हकीकत हुई, और इस हकीकत का एहसास शरफुद्दीन और शगुफ्ता को भी हो गया तो क्या होगा।
भैया जी, अचानक मैं चौंक उठा था। शगुफ्ता शरफुद्दीन से मुखातब हुई थी। आप बहुत परेशान हैं? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। आपने तो खाना भी नहीं खाया। उसने इसकी प्लेट को देखकर कहा, फिर इसकी निगाह मेरी प्लेट पर पड़ी थी। वो शिकवा बड़ी निगाहों से मुझे देखकर रह गई। शुगो, मुझे भूख नहीं है और मैं परेशान नहीं हूँ। वो कुछ सोच रहा था। शरफुद्दीन ने जवाब दिया, आपको भी भूख नहीं है? उसने मेरी तरफ देखकर कहा था। जी, पता नहीं क्या बात है, मुमकिन है ऐसा डिप्रेशन की वजह से हुआ है, मैंने प्लेट रखते हुए कहा था। उसने लम्हा भर को मुझे देखा, फिर बर्तन समेटने लगी थी। भैया जी, हम कितनी देर में पहुंचेंगे? बर्तन समेट कर वो सीट पर पाँव ऊपर कर बैठ गई थी। मेरा ख्याल है कि हम पहुंचने वाले होंगे। ट्रेन तो काफी तेज रफ्तारी से चल रही है, शरफुद्दीन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा था। फिर वो मेरी तरफ देखने लगा, जैसे मुझसे तस्दीक करना चाहता हो, और मेरा दिल हलक में धड़कने लगा था। नामालूम क्यों मैं खौफजदा था। जाने कौन सी बात है जो अंदर से अंदर मुझे लरसा रही थी। मैं निगाहें चुराकर खिड़की से बाहर देखने लगा। काफी वक्त गुजर चुका था और अब तक दरमियान में कोई आबादी भी नजर नहीं आ रही थी, जबकि अमरोहा से मुरादाबाद के दरमियान शायद कहीं कहीं ऐसा इलाका था जो सुनसान हो, वरना छोटी छोटी बस्तियां तो तमाम रास्ते में आती रहती थी। पता नहीं क्या वजह है, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। शगुफ्ता ने जुमाई रोकते हुए कहा था, आप लेट जाइए, नींद आए तो सो जाइए, मुरादाबाद आते ही हम आपको उठा देंगे। मैंने कहा तो इसने शरफुद्दीन की तरफ देखा, जैसे उसे इजाजत की ख्वाहा हो। हाँ, तुम ऊपर बर्थ पर लेट जाओ। शरफुद्दीन ये कहकर खड़ा हो गया था। उसने तमाम बर्थों पर नजर डाली थी। मेरी निगाहें भी उसकी निगाहों के साथ साथ पूरी बोगी का जायजा लेने लगी। शायद वो भी वही कक्ष देख रहा था जो मैं देख रहा था। ये इत्मीनान होने के बाद कि सब कुछ ठीक है, शरफुद्दीन ने छोटा सा तकिया और एक चादर ऊपर रख दी थी। फिर शगुफ्ता को ऊपर जाने में मदद दी थी। जब शगुफ्ता लेट गई तो वो उसके बर्थ के सामने वाली सीट पर इस तरह से बैठ गया कि इस पर निगाह रख सके। मैं अब खुद को बेहद थका हुआ महसूस कर रहा था। शगुफ्ता की तरफ से इत्मीनान होते ही मैंने पुश्त टिका दी थी। अब मेरी निगाहें शरफुद्दीन के चेहरे पर जमी हुई थी। वो कभी मुझे और कभी ऊपर निगाह करके शगुफ्ता को देखता था, मगर खामोश था। मैं समझ गया था कि वो शगुफ्ता के सोने का मुंतजर है। मैंने निगाहें खिड़की से बाहर इन रोशन चौखटों पर जमा दी, जहाँ अब मेरा और शरफुद्दीन का अक्स नजर आ रहा था। अब भी पहले ही की तरह तमाम रोशन चौखटे खाली थे, और पहले ही की तरह नामालूम सा खौफ मुझ पर दूर दूर तक फैला हुआ था। मैं सोच रहा था कि शरफुद्दीन को अपने इस खौफ के बारे में बताऊं या नहीं। शगुफ्ता शायद अभी तक सोई नहीं थी। यहाँ शरफुद्दीन किसी गहरी सोच में था। यूँ मैं फैसला करता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे पूरा एहसास था कि शरफुद्दीन और शगुफ्ता के साथ पेश आने वाले तमाम हालात का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं अगर इन लोगों के साथ ना आता तो शायद ये सब ना होता, मगर मैं तो इन हसीन लम्हों की संगत के लिए इन लोगों के साथ आया था, जिसमें शगुफ्ता मुझसे बहुत करीब होती, कई घंटे हम साथ होते। ये एहसास मेरे लिए बड़ा खुशकुन था, मगर यहाँ तो उल्टा हो गया था। उसकी गुर्बत का कोई लतीफ एहसास रहा ही नहीं था। इस बात पर मुझे बुरी तरह से खटका हो रहा था, और ये कि आखिर वो शख्स कौन था। पहले तो मैं इसे कोई बीमार आदमी समझा था, किसी भी तरह से इस बोगी में सवार हो गया होगा, मगर अब इस बंद बोगी में आना और फिर यूं अचानक गायब हो जाना उलझन में मुब्तला किया हुआ था। अगर इसका ताल्लुक हमारी हवेली से था या शकुंतला की रूह से था, तो ये काफ़ी हैरत अंगेज बात थी, क्योंकि अब तक मैंने हर शख्स से सिर्फ और सिर्फ शकुंतला के बारे में सुना था। या अब असमत जहां मेरे सामने आई थी, किसी मर्द का तो कोई जिक्र ही ना था। फिर ये कौन था? ये सवाल कुंडली मारे मेरे दिमाग में फटक रहा था। वकारुल हसन, अचानक शरफुद्दीन ने मुखातब होकर कहा था। मैं चौंक उठा। शगुफ्ता सो गई? उसने मुझे बेसाख्ता पूछा था। हाँ वकारुल हसन, वो कौन था? मैंने उसे देखा था। फिर मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। उसकी आवाज़ बढ़ाई हुई थी। आज मैंने पहली बार उसकी ये कैफियत देखी थी। शरफुद्दीन, मैं नहीं जानता कि वो कौन था। मैं खुद इसके बारे में सोच रहा हूँ। तुमने इसे जाने क्यों दिया? हम इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते। वो बंद बोगी में आकर दाखिल कैसे हुआ? मेरे पास में होता तो मैं भी इसे कभी जाने ना देता। कम से कम इससे ये तो ज़रूर पूछता कि वो क्यों हमारा पीछा कर रहा है। क्या मतलब? वो गया नहीं था? शरफुद्दीन अचानक गायब हो गया था, जैसे हवा में तहलील हो गया हो। ओहो, इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक भी शकुंतला की कौम से है। लगता तो यही है, मगर ये आखिर था कौन? मैंने अब तक तमाम कहानी में किसी मर्द का जिक्र नहीं सुना। क्यों? रमजू बाबा की बात भूल गई हो क्या?
اور وہ شکنتلا کا محبوب جسے تمہارے دادا مار کر وہیں کہیں دفن کر چکے ہیں، جس کی تلاش میں شکنتلا کی روح خوار ہوئی پھر رہی ہے۔ اوہو، میں اچھل پڑا ایک دم سے۔ مجھے رمزو بابا کی بات بھی یاد آ گئی تھی، انہوں نے کسی پرکاش کا ذکر کیا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شکنتلا کا وہی محبوب ہو جس کی تلاش میں اور جس کی وجہ سے وہ حویلی میں چکراتی پھر رہی ہے۔ ہاں، مگر یہ آج کس طرح سے سامنے آ گیا، اور پھر اب ضروری نہیں کہ ساری روحیں ترتیب سے کام کرنے کی عادی ہو، ممکن ہے ان کے یہاں یہی طریقہ ہو۔ اس نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا تھا جس پر مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ شرف الدین کی یہ بات مجھے پسند بہت آتی تھی کہ وہ بہت جلد خود پر قابو پا لیتا تھا، اور اس تبدیلی میں اس کی ہمت کا دخل تھا۔ ویسے ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میں نے اسے دیکھا تو تھا، مگر پھر مجھے کچھ یاد کیوں نہیں؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی، اور شگفتہ کب کیسے بے ہوش ہوئی؟ تم نے دیکھا کہ اسے بھی کچھ یاد نہیں ہے؟ ہاں شرف الدین، جو کچھ بھی ہوا اس تمام وقت صرف میں ہی ہوش میں تھا۔ تم سکتے کیسے عالم میں کھڑے تھے، اور جب بلکہ یقین کرو کہ ایک لمحے کو تو میں ڈر گیا تھا، یوں لگا تھا جیسے تم مار چکے ہو، اور تم جس پوزیشن میں کھڑے تھے اس میں کھڑے رہ گئے تھے، جبکہ شگفتہ تو ہمارے پہنچنے سے قبل ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے تمہیں پکڑ کر ہلایا تھا، مگر تمہیں قطعاً کوئی ہوش جنبش نہ ہوئی تھی۔ تمہارا جسم میرے ہلانے سے ہلا تو تھا، مگر ایسے جیسے تم پلاسٹک کا آدمی ہو۔ اور وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پھر پانی مانگا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیسے آیا، مگر اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اس تمام عرصے کے باوجود شرف الدین کہ وہ اس طرح سے اچانک آ کر ہمیں خوفزدہ کر دے گا۔ اس کی آنکھوں میں دوستانہ چمک تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے غصہ، نفرت یا ایسا ہی کوئی جذبہ نہیں دیکھا، سوائے اس کے کہ مجھے ایسا لگا جیسے ایک ملائم سی چمک تھی۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ مجھ سے پانی مانگا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے پانی دے کر اطمینان سے پوچھوں گا کہ وہ ہے کون اور ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس وقت تک میں اسے کوئی جیتا جاگتا انسان ہی سمجھا تھا۔ میں پانی لینے گیا، اور جب لے کر واپس آیا تو وہ غائب تھا۔ اسی لمحے تم ہوش میں آ گئے۔ وقار الحسن، تم نے غور کیا کہ اب تم سے ساری روحیں رابطہ کر رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے ان کی نظر میں تم کافی اثر رسوخ والے آدمی ہو بھائی۔ اس نے نہایت اطمینان سے کہا تھا۔ میں پھر بھی ہنس دیا۔ بات تو ٹھیک کہی ہے تم نے شرف الدین، مگر کیوں؟ میں تو ایک کمزور سا آدمی ہوں، اور پھر میرا خیال ہے کہ میں تنہا کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میری شدت سے خواہش تھی کہ تم میرا ساتھ دو، مگر تم قائل ہی نہ ہوتے تھے۔ اب قائل ہو گئے ہو تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ممکن ہے یہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میرے خیالات سے تمام روحیں اب تک واقف ہو چکی ہوں گی۔ میں نہیں جانتا شرف الدین، لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ شگفتہ ہمارے ساتھ ہے، اور میں اس کی وجہ سے کافی ڈسٹرب ہوں۔ یہی بات مجھے بھی پریشان کر رہی ہے۔ اس نے پھر پرسوچ انداز میں جواب دیا تھا۔ شرف الدین، ہمیں امروہہ سے چلے کتنا عرصہ ہو چکا ہوگا؟ بالآخر میں ضبط نہ کر پایا۔ وہ چونک اٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ ابھر آئی تھی۔ پھر یکایک وہ پریشان ہو گیا تھا۔ کافی دیر ہو گئی ہے وقار الحسن، اب تک تو ہمیں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ پھر وہ اچانک اٹھا اور اس نے کھڑکی کا شیشہ کھول کر باہر جھانکا تھا۔ میری نگاہیں بھی کھلی کھڑکی سے پار ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میں بھی اٹھ کر کھڑکی کی طرف لپکا کہ دور سے بتیاں نظر آ رہی تھیں۔ اسی لمحے میری نگاہ زمین پر پڑنے والی روشن چوکھٹوں پر پڑی۔ تقریباً ہر کھڑکی سے لوگوں کے سائے نظر آ رہے تھے۔ ایک گہما گہمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت کسی کھڑکی سے ایک بچے کی رونے کی آواز سنائی دی تھی۔ کسی شخص نے گلاس باہر نکال کر پانی پھینکا تھا، جس کے چھینٹے میرے اور شرف الدین کے چہرے پر پڑے تھے۔ ہم دونوں نے بے ساختہ سر اندر کر لیے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ہم پہنچنے والے ہیں۔ اور اسی لمحے ٹرین نے وسل دی تھی۔ اس کے تیز آواز نے گویا زندگی دہرا دی تھی۔ شگفتہ آنکھیں کھول کر سر اٹھایا تھا۔ ہم پر نگاہ پڑتی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ شرف الدین نے بھی اسے اٹھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ شگو، اٹھو، مراد آباد آ گیا ہے۔ اور وہ اس کا سہارا لے کر نیچے اتر آئی تھی۔ میرے اندر دور دور تک گہرا اطمینان پھیل گیا تھا۔ شگفتہ نے جلدی سامان سمیٹا اور برقع پہن کر بیٹھ گئی۔ اب روشنیاں قریب آ چکی تھیں۔ ٹرین کی رفتار دھیمی ہو چکی تھی، اور پھر دھیمی ہوتے ہوتے اسٹیشن سے کچھ ادھر ٹھہر گئی تھی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ شاید پٹری خالی نہیں تھی، اس لیے ٹرین رک چکی تھی۔ میری نگاہیں دوسرے ڈبوں پر پڑیں۔ اکثر ڈبوں کے دروازوں پر لوگ کھڑے تھے۔
कुछ खिड़की में से झांक रहे थे, इसलिए मैंने इसे बराबर वाले डिब्बे से उतरते देखा था। वो कंबल लपेटे अंधेरे में उतर रहा था। डिब्बे से उतरकर उसे पलटकर मेरी तरफ देखा था। इस गहरे अंधेरे में मुझे उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वही उधरी हुई खाल, वही आंखों में मुलायमत और दोस्ताना चमक। अच्छा दोस्त, मैं हवेली में तुम्हारा इंतजार करूंगा चांद की 14वीं रात को। यह आवाज़ मेरी समाज से नहीं बल्कि मेरे दिमाग के अंदर, मेरे पूरे वजूद की दीवारों से टकराई थी, और यूं जैसे वो मेरे अंदर कहीं बैठा हो। फिर वो अचानक ही पलटा और मुड़कर रेल की चमकदार पटरियों पर चलता हुआ अंधेरे में गुम हो गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो आवाज़ अजीब सी थी, बढ़ाई हुई भारी आवाज़। इस आवाज़ का अरताश काफ़ी देर तक मैंने अपने सीने में, अपने दिमाग में महसूस किया था। मैं अब भी अंधेरे में उस तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था जिस तरफ वो गया था। मैं बिल्कुल गुमसुम था। चौंका इस वक्त जब रेल हल्के से झटके के साथ मुतहरिक हो गई थी। ओ भैया, शरफुद्दीन ने मेरे कंधों को थपथपाया था। मुरादाबाद आ गया है। मैं पलटा और अपना छोटा सा अटैची केस चेक कर ले आया। शगुफ्ता तैयार बैठी थी, उसकी आंखों में शिकवा था, मध्यम सा। खुद मुझे भी वक़्त के ज़िया का शिद्दत से एहसास हुआ था। इतना खूबसूरत वक़्त अजीबो वहशत खेज लम्हात में काट चुका था। कारीन, मैंने शुरू ही में आपको बताया था कि मैंने जिस रोज़ दादी कड़ब अंगेज चीख सुनकर आँख खोली थी, इस रोज़ सुकून और ज़िंदगी की तमाम तरह ताकतों से महरूम हो गया था। खौफनाक हालात का तसलसल मेरा साया बनकर रह गया था। मैं नहीं चाहता था कि ये मेरे कौन से गुनाह की सज़ा थी। बहरहाल मैं इस पहली लताफत से महरूम हो गया था, मगर शगुफ्ता के लिए अपने दिल में मोहब्बत की हिद्दत को मैंने बढ़ते हुए महसूस किया था। कुछ इसकी निगाहों ने मुझे यकीन दिला दिया था कि वो मेरे मुतालिक इस तरह से सोच रही है जैसा कि मैं इसके बारे में सोचता हूँ। मेरा ख्याल था कि तकदीर मुझे ऐसा मौका ज़रूर देगी जब मैं इसे साफ लफ्ज़ों में कह सकूँगा कि वो दुनिया की पहली लड़की है जिसे मैंने दिल से चाहा है और जिसकी वजह से दिल धड़कने का मफ़हूम समझ पाया हूँ। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उसे अपनाने का अज़म कर चुका हूँ और उसे हर हाल में मेरा इंतज़ार करना है, मगर मैं फिर भी कुछ भी ना कह सका। और अब जाने ये मौका फिर कब आने वाला। अचानक रेल एक विसल से रुक गई। मुरादाबाद आ गया था, मगर इतनी रात होने की वजह से स्टेशन पर रश नहीं था। इक्का दुक्का कुली नंगे फर्श पर बेखबर सो रहे थे। गाड़ी रुकने और मुसाफिरों के उतरने पर एक दो कुली बड़बड़ाते हुए उठे थे, मगर मुसाफिरों पर नज़र डालकर फिर करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगे। यहाँ जितने भी मुसाफिर उतरे थे, इनमें से किसी के पास भी इतना सामान ना था कि वो कुली की ज़रूरत महसूस करता। यहाँ से दिल्ली के लिए सवार होने वाले 2-4 मुसाफिरों के सामान के साथ ज़रूर कुली चाको चबंद थे और रुकते ही डिब्बों की तरफ लपके थे। मैं वहाँ मौजूद हर एक को गौर से देख रहा था, शायद लाशोरी तौर पर इसी की तलाश में था। हम स्टेशन से निकलकर सड़क पर, वहाँ कई साइकिल, रिक्शा और टांगे खड़े थे। हमने एक टांगे वाला बुक करवा ही लिया। थोड़ी देर बाद हम टांगे में सवार एक सड़क पर चले जा रहे थे। मैं पहले शगुफ्ता और शरफुद्दीन को उनके चचा के घर छोड़ना चाहता था, फिर मेरा अपने चचा के घर जाने का इरादा था। मैं शायद आपको पहले बता चुका था कि मेरे ताया और मेरे चचा मुरादाबाद में एक ही घर में रहते थे। ये घर मेरे अब्बा ही ने इन दोनों को खरीद कर दिया था। ये काफ़ी बड़ा घर था। यहाँ इतनी गुंजाइश थी कि अम्मा, छोटी पुप्पी और मेरी दोनों बहनें रह सके, मगर फिर भी मैंने अम्मा को ताकीद की थी कि वो जिस कदर जल्द हो सके अपने लिए मकान को तलाश कर लें। फिलहाल किराए पर ले लें, वहाँ मकान खुद खरीद लूँगा। मैं गालबन ये भी बता चुका हूँ कि खुर्शीद चचा ज़मीनों की देखभाल कर रहे थे और पाई पाई का हिसाब दिया करते थे। अब मैंने सोचा था कि खुद खुर्शीद चचा से रकम मंगवा कर मैं ज़्यादा से जल्द मकान खरीद लूँ ताकि अम्मा इत्मीनान से रह सके। अब अम्मा अगर मकान ले भी चुकी थी तो मैं नहीं जानता था कि, इसलिए इस वक्त मुझे बहरहाल चचा के घर ही जाना था। चचा का घर शरफुद्दीन के चचा के घर से ज़्यादा दूर ना था, बल्कि पहले मेरे चचा का घर आता था, फिर शरफुद्दीन के चचा का। इसलिए शरफुद्दीन ने कहा कि भाई उतर जाऊँ, मगर मैंने ये मुनासिब ना समझा कि इतनी रात के शगुफ्ता की मौजूदगी में मैं शरफुद्दीन को तनहा छोड़ दूँ। चाचा, मैंने पहले इन लोगों को उतारा और जब तक शरफुद्दीन के चचा ज़ात फुरकान हैदर ने आकर दरवाज़ा न खोला, इस वक्त तक मैं वहीं खड़ा रहा। उतरते हुए शगुफ्ता ने मुझे यूं देखा जैसे जी भरकर देखना चाहती हो। उसकी निगाहों में प्यास थी, जिसकी शिद्दत मैंने खुद भी महसूस की थी। मैंने फौरन शरफुद्दीन से कहा कि मैं कल
दिन में किसी वक्त वहाँ चक्कर लगा लूँगा। असल में तो ये बात शगुफ्ता से कहना चाहता था। फुरकान हैदर ने मुझे अंदर आने और खाना खाकर जाने की दावत दी, मगर मैंने माजरत कर ली। इनको खुदा हाफिज कहकर दोबारा टांगे में आ बैठा था। गालबन 10-12 मिनट बाद ही मैं चचा के घर पहुंच गया। यहाँ अंधेरा था, शायद सब लोग सो चुके थे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो ताया ने दरवाज़ा खोला। वो मुझे अचानक वहाँ देखकर बहुत खुश हुए और लपक कर मुझे सीने से बेच लिया था। उनके अंदाज में कुछ ऐसी वारफतगी थी कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मेरे कत्ल के मंसूबे में वो शामिल नहीं थे। तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो ना? उन्होंने मुझे दोनों कांधों से पकड़कर सर से पांव तक देखा, जैसे अपनी बात का जवाब खुद अपनी निगाहों के यकीन के साथ पाना चाहते हो। जी ताया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने हंसते हुए कहा था। तुम्हारी अम्मा ने तो जान हल्कान कर रखी है अपनी, सारा दिन तुम्हारी फिक्र में बुलाई बुलाई फिरती हैं और तमाम रात जाकर तस्बीहां पढ़ती हैं। जी मैं जानता हूँ, कहाँ है अम्मा और जहानी आपा, शनो आपा और बाकी सब खैरियत से है ना? ताई कैसी है और ताया कौसर ठीक है ना? मैंने सबके बारे में पूछा। कौसर इनकी बेटी थी जो अपाहिज थी। वो सब ठीक है भाई, तुम्हारी अम्मा तो जाग रही होंगी। शनो और जहानी शायद सो चुकी हैं। वो पलटे और फिर मुझे लिए बड़े बरामदे में चले आए थे। इस बरामदे को लकड़ी के जाल लगाकर उन्होंने हाल सा बना लिया था। वो खुद गालबन इसी हाल में सोते थे, क्योंकि उनका पलंग वहीं पड़ा था। सामने मोड़े रखे हुए थे। तुम बैठो, खाना खाया है तुमने? हाँ ताया, मैं खाना खा चुका हूँ। मैं अम्मा से, हाँ भाई, वो दाएं तरफ वाले दोनों कमरे तुम्हारी अम्मा और बहनों के इस्तेमाल में हैं। वो कोने वाले कमरे में होंगी, सब वहीं सोते हैं। बटन भी उन्हीं के साथ है। बटन वो छोटी पुफी को कहते थे, उनका नाम बतूल था। ये सुनते ही मैं अपना अटैची केस उठाए कोने वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। मैंने ताया से कहा कि वो सो जाए, मगर वो हंस कर बोले, भाई खाना खा चुके हो, चाय तो पियोगे ना? और इनमें से कोई ना कोई चाय बनाने को उठेगा। तुम्हारे तो फैल हम भी फेज